नाम से जी शाह जी तो मेरे यहाँ ना म्यूट लग गया। ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਮਿਊਨਚਨ ਮਿਊਨਿਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਊਨਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਊਂਚਨ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਊਂਚਨ ਹੀ ਅੰਕਲ ਇਕਬਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਜਾਂ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸੇਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਣੋ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਹੈ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਿਊਨਿਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਸੋਫੀਆ। ਜੋ ਅਰਬੀ ਦੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਸਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਸਲਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੁੰਨੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਬਸਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬੜੇ ਨੇ। ਤਾਕਤਵਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੇ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਜੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸ ਛੜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਕਾਏ ਦੋ ਜਹਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान पाक नाज़िल होया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद कोई शरी नबी नहीं आएगा, कोई नबी कोई रसूल कुछ भी नहीं आएगा। मैं पिछले दिनों दे विच एक हदीस भी पढ़ी है, क्योंकि मैं इस बारे सर्च भी कर रहा, पहले नहीं सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मेरे बाद कोई शरी नबी नहीं आएगे, शरीयत दे दरवाजे बंद ने। हाँ, अल्लाह ताला दी ज़ात इंसान दी मदद कर सकता है, वो मदद हो सकती है मुबशरात दे विच। मुबशरात ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ख्वाब ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ खुदा ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, मतलब ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ख्वाब ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰਾਤ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੀ ਨਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਨ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਕਰਾਮਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੌਫੀਕ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਉਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕरें। हाँ जी। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? उनको पता नहीं मसलक का, वो इन चीज़ों का उन्होंने बता दिया है, कम पता है। आप कमेंट ले सब दोस्तों के। तौफीक साहब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? जी शाद भाई की आख्या जे? मैं क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਈਸਾ, तू नहीं सा जानता क्या लोग की
ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫਰਮਾਏਂਗੇ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਤਸੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਣਗੇ, 100% ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੀ ਹਸਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ, हसन भाई मैं भी यही क्या जो उन्होंने आसमान तो उठा लिया। तसीफ भाई जरा मुझे हसन भाई से थोड़ी सी बात करने दे। हसन भाई और आपने गौर किया बात पे कि शरई नबी उन्होंने कहा नहीं आ सकता, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि इनका उन्होंने ये भी कहा कि इनका नमाज का तरीका मुख्तलिफ कुरान पाक की तराजम किए हुए हैं, सब कुछ सेम है, कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। ये थोड़ी सी बातें हैं एड्रेस करने साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਤਮ ਨਬੀyin ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸ਼ਰਈ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਚूंकि अल्लाह ताला ने फरमाता है कि कुरान ਜਿਹੜਾ दीन मुकम्मल हो गया ना, ਇਹ ਜਿਹੜਾ दीन है मुकम्मल करता, अल्लाह पाक ने कुरान पाक फरमाता दीन मुकम्मल हो गया है। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਦੀਨ ਇਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਬਲੀਗ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਕਰਾਏਗਾ, ਅੰਬੀਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਨਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਰਈ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਐਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਕਿ ਵਮਾ ਕਤਲੂਹੂ ਵਮਾ ਸਲਬੂਹੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਨਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸ਼ੁਬੇ ਚ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲ ਰਫਾਉल्लाह, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ, ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ ਉਠਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਬੂਵਤ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਬੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਬੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਕੀਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਮੀ ਅਹਮਦ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਹਮਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹਮਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਹਮਦ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਨੇ ਸਨ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੋਤ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਈਸਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ, ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਵਾਇਤ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ, ਨੀਚੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਚੱਕ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਿਆ। जी हसन भाई गल जारी रखो तुसी प्लीज, सॉरी मैंने कॉल कर दी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बल्कि डॉक्टर साहब आगे ने तुसी आप बात करें, मुझे पता नहीं है क्या बात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक भाई हैं, वो 8 महीने से अभी जर्मनी गए हैं, म्यूनिच कोई सिटी है वहाँ पे इनको पाकिस्तान मंचन कहते हैं जर्मन में, मंचन, बिल्कुल। वहाँ पे इनको कोई मुसलमानों की मस्जिद नहीं मिल रही, लेकिन ये कादियानियों की मस्जिद में गए हैं कोई 5-7 दिन से, और वहाँ पे उनको महसूस हुआ कि उनकी नमाजें भी सेम है
اور ان کے قرآن پاک کے ان کے بہت سے ترجمے ہیں وہ بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں ٹرانسلیشن میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ترجموں میں اور تاج کمپنی کے ترجموں میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں یہ بات غلط ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شرعی نبی نہیں آتا. ان کے بارے میں کوئی سوالات تھے. انہوں نے عربی عبارت کی بات کی ہے. جی میں نے عربی کی بات کی ہے، میں نے ترجمے کی بات نہیں کی. علی بھائی سنیے عربی والی بات ٹھیک ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے بالکل. جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ان کو ایڈریس کر دیں. ہاں تو سوال کیا ہے؟ ان کا سوال ہے کہ فرق کہاں پہ آ رہا ہے؟ اگر ان کا ترجمہ بھی یہی ہے، اگر ان کا قرآن پاک بھی سیم ہے، نمازیں بھی سیم ہے، میں کہتا ہوں ان کی عید یہ نہیں جانتے بھائی، ان کی عید بھی سیم ہے، وہ روزے بھی وہی رکھتے ہیں، 1-2 دن پیچھے آگے کر کے، کھولتے بھی ویسے ہیں، نماز بھی بالکل ویسے پڑھتے ہیں. لیکن نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ نے ان سے پوچھا کہ نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ جی میری ان کے بارے میں میری اس متعلقہ ان سے بات نہیں ہوئی، لیکن جو انکل تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے بزرگ، وہ مجھے ایک دن پوچھتے ہیں کہ جی آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، نیت کیسے کرتے ہیں. تو میں نے تو بچپن سے ہی ہمیں جو سیکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے گاؤں کے جو مولوی صاحب ہیں ان سے سیکھا ہوا ہے، 2 رکعت نماز فرض تابع اللہ تعالیٰ دی وقت نماز ظہر مغرب جو بھی ہے، پیچھے ایسے امام دے اللہ اکبر. ٹھیک. تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا اگر یہ زبان سے بولنے کی بجائے اگر آپ اپنے دل میں ہی نیت کر لو تو وہ بھی ٹھیک ہے، زبان سے بولنا اتنا ضروری نہیں ہے. اور ان سے پوچھنا تھا کہ آپ کیسے نیت کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا سیم یہی ہے. نہیں غلط کہا، انہوں نے جھوٹ بولا آپ سے. نہیں میں آپ کو قادیانی کی کتاب دکھا دیتا ہوں جہاں نماز کی نیت لکھی ہے. پتہ نہیں سر، میرے ساتھ جو لڑکا میں آپ تھا کو وہ کتاب بتاتا ہوں، آپ کھول کر دیکھ لینا. 1 منٹ دے، میں آپ کو کتاب بتا دیتا ہوں. دیکھیں جی، اس کو نام ہے دعائیہ خزائن. ٹھیک ہے جی، نام لکھیں کتاب کا، دعائیہ خزائن اس کا نام ہے. اور یہاں یہ محمد اعظم اکثیر احمد اکیڈمی جو ہے نا، وہاں سے انہوں نے چھپوائی ہوئی ہے. جی اور یہاں پر ان کی نماز کی نیت لکھی ہوئی ہے. میرا خیال یہی کتاب ہے، میں آپ کو اپنے یادداشت سے بتا رہا ہوں. ہاں یہی انہی کی کتاب ہے جی، پکی بات ہے. یہاں پر آپ کو کتاب کے ٹائٹل پر ملے گا قبولیت دعا کے طریق نماز با ترجمہ ادیت القرآن، ادیت الرسول، ادیت الجعلی مسیح موعود و چہل حدیث. ٹھیک ہے جی، تو یہاں آپ پڑھ لیں نماز کی نیت میں. ایک قرآن کی آیت ہے، وہ یہ کہتے ہیں، یہ مرزا مرتاد نے نہیں، حکیم نورے نے یہ مقرر کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس میں کوئی بڑی خوبصورت آیت ہے، لیکن یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے. آپ جانتے ہیں ہم تو محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں. میں آپ کو فرق بتاتا ہوں ان کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کی نیت سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے. دوسری بات، اگر آپ ان کے ساتھ، آپ کو وہ اٹھنا بیٹھنا بالکل وہی نظر آئے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ظاہری طور پر ویسی نماز ہے ان کی، لیکن یہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ نماز کو اپنی زبان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ اس بات پر قطعی زور نہیں دیتے، حالانکہ لکھتے ایسے ہی ہیں کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے پھر صورتیں پڑھی جائیں، لیکن پریکٹیکلی اگر آپ ان میں سے کسی کو پوچھیں تو اس کو بہت کم لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہوں گی. لیکن اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو وہی ہے. یہ نماز کے آخر میں دعا نہیں مانگتے، بہت سارے دوسرے لوگ بھی نہیں مانتے مسلمان مسالک میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے مسلمہ کذاب کا نام سنا ہے؟ جی میں نے سنا ہوا ہے. ہاں، کیا خیال ہے؟ اس کا قرآن مختلف تھا سر. مجھے جو اس کا یہی قرآن تھا میرے بھائی، اس کی زبان بھی یہی تھی، وہ اہل عرب تھا، اہل زبان تھا، اور یمامہ
उसी रीजन का हिस्सा है जिस रीजन में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद भाई सैयद साहब मैंने ना इशा की नमाज पढ़ी है इनके साथ। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ते हैं, उसके बाद जो भी सूरा हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ी है इन्होंने। नहीं, उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज, मैं आपको जरा बता देता हूँ कि मुझे जो चीज नहीं अभी तक, जो ना जहाँ पे हो सकता है फंसना चाहिए, आगे वाले बंदे को शक होना चाहिए ना, जहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं फंसा। हालांकि मैं वहाबियों की मस्जिद में गया हूँ, वहां पे भी नजर आ जाता है मामला, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो रफा दैन करते हैं, ठीक है। शियों की मस्जिद में भी मतलब इतना नहीं गया, लेकिन उनके बारे में सुना हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं जब गया हूँ ना, आप कह रहे थे कि इनकी वो फर्क है, कोई फर्क नहीं है। नहीं, देखिए आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी है। इनकी नमाज का तरीक वही है जो अहले सुन्नत का है, लेकिन दुआ के बगैर, आखिर में दुआ नहीं करेंगे। तो ये वहाबी अहले वहाब जो है और अहले सुन्नत के बैन इन्होंने एक तरीका इजाद कर रखा है। अगर नमाज बिलजहर पढ़ेंगे तो बिल्कुल वैसे ही सूरा फातिहा पढ़ेंगे और एक छोटी सी कोई और सूरत पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही किया ना उसने, उसी तरह हम बैठेंगे, वही होगी, रुकू सजूद वैसा ही होगा, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा ज़ाहिरन। आप समझ गए मेरी बात। मैंने कहा कि ज़ाहिरन कोई फर्क है इनकी नमाज में, मैंने तो कहा आपने नीयत पूछनी थी, ये किताब में भी लिखी हुई है, इनकी नीयत जो आप करते हैं वो नहीं है। ये मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि ज़ाहिरन इन्होंने एक 90% कादियानियों को धोखा दे रखा है। आप इनकी ईद की नमाज पर जाके बैठे, वैसे ही होगी, अजान होगी, खुतबा होगा, वैसे ही ईद की नमाज में तकबीरें भी पढ़ेंगे। इनका रोजा भी वही है, उसी वक्त नियत करेंगे। इनकी तरावियां 8 होती हैं, आम मुसलमानों में भी बाज 8 पढ़ते हैं, बाज 20 पढ़ते हैं, ठीक है। आपको जाहिरन कोई फर्क नजर नहीं आएगा शायर इस्लामिया के, लेकिन उनके पीछे जो फिलॉसफी इन्होंने रखी हुई है ना, उसमें तो बुनियादी फर्क है। अब मुसैलमा कज़्ज़ाब के बारे में सुन ले, और असवद अल-अनसी के बारे में, सज्जाद बिन हारिस के बारे में, और तलहा बिन असदी, ये सब की नमाज एक थी। बल्कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत में लिखा, या रसूलुल्लाह, मैं तो आपको अल्लाह का रसूल मानता हूं, मेरा आपसे वही रिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम का हारून अलैहिस्सलाम से था। अपने आप को कम बताया, लेकिन कहा कि अल्लाह ताला ने आधी जमीन की नबूवत कुरैश को दे दी है और आधी जमीन की नबूवत मुझे दे दी। जी सैयद भाई एक नहीं, आप पूरी बात एक दफा सुन ले, आपको वहम दूर हो जाएगा। जी एक और वाकया मैं आपको बताऊं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खिलाफ जंग का हुक्म दे दिया। जब आपकी वफात हो गई तो अबू बकर सिद्दीक ने हुज्जत पूरी करने के लिए अपना सफीर मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास भेजा। उसने वहां जाके देखा कि लंबी लंबी दाढ़ियां रखी हैं, वही कुरान है, वही नमाज है, वैसे ही पढ़ते हैं, 5 वक्त अज़ान भी देते हैं, और उसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं। वो वहां जाकर मुसलमा का मरीद हो गया, उसने इस्लाम छोड़ दिया, मुर्तद हो गया, उनके साथ मिल गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, इसी बात पर जो आप अभी बयान कर रहे हैं कि उनका तो कुरान भी वही है, उनकी नमाज भी वही है, वो पढ़ते भी वैसे हैं, उनका काबा भी वही है, ठीक है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि, इसी का नाम ज़िंदीकियत है मेरे भाई। इसीलिए हम कहते हैं कादियानियत का दीन नहीं है। ज़ंदीक की डेफिनेशन ये है कि एक सांस में वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, फिर शायर इस्लामी और अहकाम इस्लामिया की बातिल तावील करता है। कादियानी इस्लाम के अहकाम की बातिल तावील करते हैं। अब देख लें, मुसैलमा कज़्ज़ाब से मुकाबला करते हैं। अगर आपको नहीं पता मुसैलमा कज़्ज़ाब कौन था, उसका दारुल हुकूमत जानते हैं आज क्या कहलाता है, क्या नाम है उसके दारुल हुकूमत का, जो यमामा का दारुल हुकूमत था मुसैलमा कज़्ज़ाब का? आपको इल्म है उस शहर का नाम? क्यों भाई? जी सर, मुझे नहीं मालूम। उसका नाम रियाद है। आप जानते हैं रियाद किस मुल्क का दारुल खिलाफा है? सऊदी अरब। बिल्कुल, यमामा का हुक्मरान का दारुल खिलाफा रियाद था, आज वो रियाद कहलाता है।
آپ اس کی طاقت کا اندازہ کریں. میں پچھلے دنوں میں سید صاحب میں آج نہیں کل میری جو ہے بات نا، پوری سن لے پھر آپ جو مرضی کہیں. تو بات یہ جی، میں آپ سنا. کو بتا رہا تھا وہ بھی بالکل بیان نہیں سب یہی تھے، لیکن کس بات پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافر قرار دے دیا اور زندیق قرار دے دیا اور کبھی اس کو تبلیغ نہیں کی اور کبھی اس سے بات تک نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دعویٰ دار تھا نبوت کا. وہ کہتا تھا اسلام تو یہی ہے، میں اسلام میں ایک اور نبی اللہ نے بھیج دیا. اور اس کی جو بات تھی مرزا قادیانی مرتد سے بہت زیادہ لاجیکل تھی. وہ کہتا تھا دیکھیں اس کی تو سنت چلی آ رہی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے، ایک ہی وقت میں دونوں نبی تھے. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام ایک وقت میں دونوں نبی تھے. کہتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. اور آپ کی صحیح حدیث ہے، یہ ترمذی کی 2219 ہے اور مستدرک حاکم کی 4514 ہے. انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعمون انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. قادیانیت میں مرزا مرتد کا دعویٰ ہے مسلمہ کذاب کی طرح، طلحہ کی طرح اور اسود الانسی کی طرح کہ وہ نبی ہے اور وہ رسول ہے. یہ بات اور پھر ان کے یہ جو ظاہراً اس بات سے اپنے ظاہر سے تو یہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. 90% قادیانی کہتے ہیں لو جی ہماری نماز بھی وہی، ہمارا قرآن بھی وہی، ہماری عید بھی وہی، ہمارا روزہ بھی وہی، ہم ہر وہ بات کرتے ہیں جو مسلمان کرتا ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تم اس لیے مسلمان نہیں ہو کہ تم جس کو مانتے ہو وہ کذاب مسلمہ کذاب کی سنت پر قائم ہے، اس کا دعویٰ نبوت ہے. اور مسلمہ کذاب کو، اسود الانسی کو، طلحہ بن اسدی کو، سجا بن حارث کو اس لیے کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا کیونکہ یہ کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں، شاعر بھی وہی استعمال کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے تاکہ ایک دجال کی پیروی کرے. اور اسی کا نام ہے زندیقیت. ان کا نہ مذہب ہے نہ ان کا دین ہے. اور یاد رکھیں زندیق کی ڈیفینیشن دوبارہ بتا دیتا ہوں. زندیق وہ ہے جو ایک سانس میں کلمہ پڑھتا ہے اور دوسرے سانس میں اسلام کے احکام کی باطل تعویل کرتا ہے. اگر آپ اور ان کی مسجد کے بارے میں سن لیں، یہ بھی بتاؤں جہاں آپ جاتے ہیں اللہ کا حکم تو پڑھ لینا تھا وہاں جانے سے پہلے. سورہ توبہ کھولیں، آیت نمبر 107 کھولیں. ابو امیر نامی ایک شخص تھا جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مسجد بنائی. کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی وہی تھی، قرآن بھی وہی پڑھتا تھا، ہر کام شعائر اسلامی کے مطابق کرتا تھا، لیکن زندیق اور منافق تھا. اس نے جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ اس کا افتتاح کر دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی سورہ توبہ میں کہ یہ مسجد کے بارے میں کہا کہ مسجداً ضرارا و کفرا و تفریقا بین المومنین، کہ یہ جو اس نے مسجد بنائی ہے یہ ضرر پہنچانے کے لیے ہے، کفر کرنے کے لیے ہے اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے. یہی تو مرزا قادیانی کرتے ہیں کہ شاعر وہی ہیں ابو امیر کی طرح، لیکن ایک نبی بنا رکھا ہے جو انہیں کافر اور مرتد کر دیتا ہے. اور اس کے بعد بہت ساری ڈیٹیل میں آپ کو ابھی نہیں بتا رہا، میں آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اگلی آیت میں لا تقم فیہ ابدا، کہ اس میں کبھی بھول کر بھی قدم مت رکھنا. آپ کو پتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے حکم دیا کہ اس مسجد کو جلا کر خاک کر دو. اس سے زیادہ اسلام کی کاپی ابو میر سے زیادہ کون کرتا ہے؟ آپ ایک ایسی جگہ داخل ہوئے جہاں کے داخل ہونے کی سزا جہنم ہے. یہ آپ جو بات ابو کریں. کہا ہے آپ نے کہ مسجد جو جلا دیں، یہ کسی حدیث میں ہے؟ یہ سنت محمد مصطفیٰ ان کے عمل میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں، لیکن سر کہیں پہ لکھی تو ہوگی نا. ہاں ان کے بالکل ہے جی. یہ ان کا حکم تھا کہاں پہ لکھی ہوئی کہ اس کو جلا کر خاک کر دو.
आपने तो ऐसे इस्लाम तो की फिर ये- तारीख ही नहीं पढ़ी, आप तो जानते ही नहीं है। अबू अमीर लिखते हैं, अभी गूगल पर मान निकाल रहा कर हूं, देख ले। मैं सर मान रहा हूं, मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मुझे ये बताएं ये कहां पे हम लिखा आपको है? निकाल देंगे वो, लेकिन मेरी एक हाँ। वीडियो है, देखें, मेरा इसी नाम से डीपी है और वहां पर ये सबूत लगे हुए हैं। यूट्यूब पर है, यही डीपी है, वहां लिखा है मस्जिद जर्रार, ठीक है, वहां पर सब सबूत लगे हुए हैं। आप कादियानी की मस्जिद में डाल के आपने तो अल्लाह ताला के डायरेक्ट हुक्म का इनकार कर दिया, वला तकुम फीही अबदा। सर बात ये है कि मुझे नहीं था पता, लेकिन अब मुझे पता हुआ है तो इसीलिए मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ नहीं ना। नहीं नहीं, आप मैं भाई हैं इसीलिए- हमारे, हम आपको किसी दूसरी वजह से नहीं, हम आपको हवाला जहाद देकर बता रहे हैं मैं कि वही तो इनके कह रहा हूँ ना कि देखने आपने ये में- जो मस्जिद जी, देखने में सब कुछ वही लगेगा आपको। जी, और आप मैं तो वही चिकनी कह रहा हूँ कीड़ी ना। बातें भी करेंगे। मेरे साथ तो अभी तक जो सही बात है कि किसी ने किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई, या सिर्फ ये है कि आपसे मैं पूछा असल होगा में- कौन हो, कहां से आए हो, देखा नहीं है कभी। जी वो तो फिर हर इंसान ही पूछता है ना, नहीं, जब आप मुसलमानों किसी की नई जगह पे मस्जिदों जाएं में तो। कोई नहीं पूछता। आप किसी मुसलमान की मस्जिद में चले जाना किसी दिन, मैं कहता हूं आपकी तरफ आंख उठाकर कोई नहीं देखेगा। कादियानी हर एक से पूछते हैं ये बात, कौन है, कहां से आए हैं, क्या आपका अकीदा है, फिर आपको वो कह देंगे आपने नमाज पढ़नी है, पढ़े, हमारे पीछे पढ़े, देख ले हमारी नमाज भी वही है, हम भी मुसलमान हैं। मेरी बात ये है, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि मुझे जैसे ही पता चला है इस मामले में, मैं इसीलिए ये रहनुमाई ले रहा हूं। हाँ ठीक है, आप बात करें, आप जितने सवाल हैं करें, अगर हमें जवाब आता होगा। देखें, हम कादियानियत के बारे में कादियानियों से ज्यादा जानते हैं, ये आपको हम सही। बता दें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये नीचे एक आईडी बैठी है मलिक साहब, आप थोड़ा सा बता देंगे आप कौन है? ये बहुत बड़े बंदे हैं क्या नाम है शाद भाई आपका, ये इनका ताल्लुक मेरे ख्याल अमेरिका से है। जी मैं खुद बता देता हूँ प्लीज। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम। जी एक सुन्नी मुसलमान हूँ। ठीक हो गया। ठीक है सर, कोई और चीज़ पूछनी? नहीं सर, बस इतना ही पूछना था। जी डॉक्टर साहब, यू कैन कैरी ऑन विद। नहीं, अब वो भाई जो है ना वो सवाल करें, आप तौफीक सवाल साहब। करें, मैं जवाब दूँ। मलिक साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, पहले जरा तौफीक साहब का थोड़ा मसला हल कर लें। ठीक है, ठीक। थैंक यू जी। तौफीक साहब। सर मैं आजकल जो है ना यूट्यूब पे मैं सुन रहा हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को। अस्तगफुरुल्लाह रब्बी। एक और जिंदगी। जी अब बात ये है सर, बात ये है कि पिछले मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी सुन रहा था, और जो माजरत के साथ तसीफ साहब, आपका वो पिछला क्वेश्चन हो गया क्लियर? डॉक्टर साहब, इन्होंने ना कुछ मुझे वो बात की थी कि शरई नबी कोई नहीं आएगा, और मस्जिद ज़रार का भी ये पूछ रहे हैं। मतलब वो मेरी समझ से थोड़ा बाला तो हो रही बातें, उम्मीद है कि ये इल्म के लिए पूछ रहे होंगे। माशाल्लाह हमारे भी इल्म में इजाफा होगा। देखें, ये कादियानी एक और काम करते हैं, ये नबी और रसूल में एक इबहाम पैदा करना चाहते हैं। रसूल का मतलब है रिसालत वाला, रिसाला से है, रिसाला किताब या पैगाम का कहा जाता है अरबी ज़बान में। तो रसूल जो है वो शरई नबी होता है, क्योंकि वो शरीयत यानी रिसाला लेकर आता है अपने साथ। और दूसरी जो नबूवत है वो नबी कहलाता है। नबी के लिए ज़रूरी नहीं कि वो शरीयत लेकर आए। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे, और रसूल नबी भी होता है, ये भी जान रखें, लेकिन नबी रसूल होना ज़रूरी नहीं है। तो उनके साथ हारून अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के नबी थे, और मूसा अलैहिस्सलाम रसूल भी थे और नबी भी थे। तो ये कादियानी बहुत आपके दिल में इबहाम डालेंगे। तो मिर्ज़ा कहता है जी, ये इन्होंने कहा जैसे कादियानी कहेगा मैं शरई नबी नहीं, तो आप कुरान की आयत देखें और हदीस देखें, दोनों में रसूल का नाम नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबी। एक में रसूल आ गया, ठीक है ना, कुरान में, और हदीस में आ गया इन्ना उसयकुन फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासूना कुल्लुहुम यसमु अन्नहु नबियुम व अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबी बादी। उन्होंने
जो एक जगह रसूल कह दिया, एक जगह नबी कह दिया, तो मतलब दोनों की बंदी है। ना कभी रसूल आएगा क़यामत के दिन तक, दौर रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है क़यामत के रोज तक, और इस दौर रिसालत में ना कोई नया नबी आएगा और ना कोई नया रसूल आएगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों आएंगे, ये फिर पूछते हैं कादियानी। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ की थी, एली एली लिमा सबक्तानी, जब उनको तंग किया गया कि उन्हें स्लीप, हालांकि वो स्लीप पर कभी नहीं चढ़ाए गए, वो स्लीप के करीब तक नहीं लाए गए, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। बल रफ़ाउल्लाहु अलैहि वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीम। तो ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला उनकी दुआ के नतीजे में एक नेमत यानी इनाम के तौर पर वापस भेज रहा है। और अल्लाह ताला की ये आदत है कि ऐसी जो बातें हैं उससे अल्लाह ताला अपनी खुदाई का सबूत देता है। ये बातें आम बातों से बड़ी अलग होती हैं, जैसे साहबुल कहफ का वाकया है। अल्लाह ताला ने कहा 300 साल जिंदा रहे, उनका कुत्ता जो बाहर बैठा था उसकी हड्डियां भी पिघल गई, और उनकी 300 साल से जायद की मुद्दत बताई गई। इसी तरह के और भी बहुत से वाकयात मिलते हैं, और ये वाकयात अल्लाह ताला की अपनी ताकत, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि मैं अपनी ताकत बयान करने के तुम्हें खोल खोल के दिखाता हूं और बताता हूं। और ईसा अलैहिस्सलाम अकेले नहीं है जो आसमानों पर उठाए गए, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी बहुत सारी हमें रिवायात ऐसी मिलती हैं। और तो और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कादियानी है ये बड़े ही धोखेबाज हैं, इनकी धोखेबाजी की तो इंतहा ही नहीं है। मैं आपको कई दफा बताता रहता हूं, बल्कि वो मैंने एक अपनी वीडियो भी अब अपलोड कर दी हुई है, इसी टिकटॉक के चैनल पर है, कि मूसा अलैहिस्सलाम इज अलाइव अकॉर्डिंग टू मिर्जा कादियानी। तो आप देख लें कि उसने तो मिर्जा कादियानी, एक तरफ तो कादियानियों को मैं तो कहता हूं इन जैसे जालसाज है ही नहीं। मिर्जा कादियानी ने अपनी खजाइन की जिल्द 8 है, सफ़ा नंबर 68-69 है, 68-69 है, नूरुल हक अल हिस्सातुल ऊला में मिर्जा कादियानी अरबी और उर्दू दोनों में लिखता है, हादा हुआ मूसा फतिल्ला अल्लाज़ी यशार अल्लाह फी किताबिही इला हयाते। गलत अरबी है, जान लें ये। व फरदा अलैना नुमिना बिअन्नहु हय्युन फिस समाए व लम यमुत व लैसा मिनल मैयतैन। लिखता है कि ये वही मूसा अलैहिस्सलाम मर्द खुदा है जिसकी निस्बत कुरान में इशारा है कि वो जिंदा है, इला हयाते ही उनकी जिंदगी की तरफ, लेकिन उसने लिखा वो जिंदा है। और हम पर फर्ज हो गया है कि हम इस पर ईमान लावें कि वो आसमान में मौजूद है। वलम यमुत, और मौत नहीं है, इसका तर्जमा ही नहीं किया मिर्जे ने। वलैसा मिनल मैयतैन, और मुर्दों में से नहीं है। अब कोई कादियानी मुर्तद मुझे ये आके बताए कि मिर्जा मुर्तद या तो लानती पागल था, जो हम कहते हैं ज़हनी मरीज था, यहां उसने क्या बकवास लिखी हुई है, कोई बताए मर्ज़ई हमें आकर। वो तो कहता है मूसा अलैहिस्सलाम आसमानों में जिंदा हैं, डायरेक्शन भी बता रहा है। जब हम कहते हैं बल रफ़ाउल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया, तो मर्ज़ई कहता है ये तो खारके आदत ये नहीं है, ये तो अकल पर पूरा नहीं। तो ये कौन सी ताड़ी मां दी अकल ते पूरा उतरदा है? डॉक्टर साहब हज भी करने सब यहाँ पे ना, नहीं और सुने नहीं, दूसरी बात, एक मिनट, ये है जी इमामतुल बुशरा, सफा नंबर 132 है, और ये खजाइन में भी मौजूद है, लेकिन वहां पर सिर्फ अरबी में कर दिया है, उर्दू का तर्जमा निकाल दिया। ये मिर्जे की अरबी और उर्दू है, दोनों है। कहते हैं बल हयात कलीम अल्लाह साबत ब नस अल कुरान अल करीम अल्लाह तक़रा फिल कुरान मा क़ाल अल्लाह तआला अज़्ज़ व जल फला तकुम फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही व अंत तालमु इन्न हादल आयाता नज़्ज़लता फी मूसा फहिया दलील सही अला हयात मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मिर्जे वहां इसने कुरान का हवाला दिया है, सूरह सजदा की आयत है, फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही, ये उसकी दरमियान वाला हिस्सा है। इससे पहले अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी, फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही, आप इसके मिलने के बारे में शक न करें, और ये किताब उनके लिए हिदायत का जरिया थी। मिर्जे ने वो निकाल दिया कि पीछे किताब वाला हिस्सा और आगे किताब वाला हिस्सा निकाल के उसने कहा कि फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही, बस तू इसके मिलने के बारे में शक नहीं। एडा फ्रॉडिया है मिर्जा। आगे इसका तर्जमा सुने, मिर्जा क्या लिखता है, कहता है बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिंदा होना कुरान करीम से साबित है।
और मरज़इयो, मिर्जा पागल है या तुम पागल हो, दोनों में कौन वाला पागल है? कहता है मिर्जा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिंदा होना कुरान करीम से साबित है। क्या तू कुरान करीम में नहीं पढ़ता कि अल्लाह ताला ने फरमाया फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिकाही, तू इसकी मुलाकात के बारे में शक ना कर। और तू जानता है ये आयत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उतरी है और आपकी जिंदगी पर सरी दलील है, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और मुर्दे जिंदों से नहीं मिलते। बताओ जी, ये इल्जामी जवाब हो सकता है? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बार बार अपनी किताबों में लिखा है मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है और कुरान पाक पर धोखा दिया है लोगों को। ये आयत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं है, सूरह सजदा की आयत नंबर 23 है, आप इसको पढ़कर देखें और इसमें मूसा अलैहिस्सलाम की किताब का जिक्र है। आप अगला भी एक और हवाला पढ़ें, ये मरज़इयों को बताओ जाके ये क्या फ्रॉड लगाया हुआ है। ये जी खजाइन की जिल्द 17 है, सफा नंबर 101 तोहफा गोल्डिया है। कहता है कि उनकी मौत पर हमारे पास मौजूद नहीं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कर रहा है। फिर कहता है बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत खुद मुश्तबे मालूम होती है। आगे लिखता है क्योंकि उनकी जिंदगी में ये कुरानी आयत गवाह है। दोबारा हवाला दे रहा है, कौन सी आयत? फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिकाही, सूरह सजदा की आयत नंबर 23 है। तो आगे कहता है और एक हदीस भी गवाह है। मैंने कहता हूं अगर वो हदीस मुझे तुम मूसा अलैहिस्सलाम दिखा दो ना, इस हदीस के मुताबिक मैं $10,000 इनाम भी दूंगा और साथ में सारा खर्चा भी दूंगा। कहता है एक मिर्जा मुर्तद लिखता है, एक जाली हदीस थी, ये भी याद रखे। एक हदीस भी गवाह है कि मूसा अलैहिस्सलाम हर साल 10,000 कद्दूसियों के साथ खाना काबा के हज करने को आता है। ये लो जी, अब एक बंदा नहीं आसमानों उतर दिया, 10,000 तो कद्दूसी उतरते हैं हर साल और एक मूसा अलैहिस्सलाम उतरते हैं। लानत है मरज़इयों पर। अब बात करें, आगे बताएं। डॉक्टर साहब एक ना सवाल एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं हमारे साथ, तो इन्होंने सवाल रखा कि उनके कुरान पाक के तर्जमे भी सेम हैं। गलत है ये, इनके बिल्कुल गलत है, गलत बात है। हाँ, ये जरूर एड्रेस होना चाहिए, मैं समझता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। वो भाई मौजूद है, ये चले गए? मौजूद है डॉक्टर साहब, सुन रहे हैं आप? डॉक्टर साहब मौजूद है, वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने अभी वो मिर्जा खोते को सुना है, जो इंजीनियर खोता है ना, उसको सुन के आए हैं, ये इसलिए वो कह रहे हैं। नहीं भाई, हमें माफ करना, इंजीनियर साहब जैसा धोखेबाज कोई कम लोग देखे हैं, वो मुझे जानता है मिर्जा इंजीनियर जी, वो इसलिए वो कह रहे हैं ना तर्जमा। हाँ, मैंने उसको ईमेल की थी, उसने मुझे अपना ईमेल दिया, मैंने उसको ईमेल किया और फिर मैसेज भेजा। मैंने कहा तुमसे ज्यादा, उसने मेरा जिक्र भी किया है। कहता है जी देखो मुझे सुनने वाले तो यूरोप के PhD डॉक्टर्स हैं। तो मैंने कहा भाई मैं उनमें नहीं हूँ, मेरा नाम मत लेना, मैं तुम्हें धोखेबाज और फ्रॉडिया समझता हूँ, क्योंकि वो एक इंतहाई जाहिल शख्स है जिसको ना कुरान का पता है ना सुन्नत का पता है। वो इधर उधर से काट छाट के बस अपना कुछ बना के जो इस्लाम की तौहीन के ज़मरे में आता है वो बातें करता है। और आप याद रखें, इसको 6 मरतबा या 5 मरतबा गिरफ्तार किया चुका है, इसको वार्निंग मिली हुई है, और जिस दिन कोई मुसलमान हुकूमत आई ये दोबारा घर वापस नहीं आएगा। तो खैर मैं आपको इनके सवाल पे एड्रेस हो जाए थोड़ा सा कि इन्होंने, हाँ, तर्जमे के बारे में बताता हूँ जी, 1 मिनट में वो निकालने दे मुझे, मैं तो आयात निकाल कर फिर बताऊंगा ना आपको। हाँ बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब इनको ये पता नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमें, मैं इस बारे में पूछना चाह रहा हूँ, रहनुमाई चाह रहा हूँ, तो आप निकालें। मैं एक छोटी सी बात करूँ डॉक्टर साहब। हाँ, इनसे पूछें, इनके पास तफसीर सगीर है जो इनका सबसे पॉपुलर तर्जमा है मरज़इयों का। तो तौफीक साहब आप इधर ही मौजूद ही हैं? मिस्टर तौफीक। जी सर मैं मौजूद हूँ, मैंने सारी बात सुनी है, मैं फॉलो कर रहा हूँ। हाँ नहीं, देखें मैं आपको नाम बताता हूँ, इनका किसी तर्जमे का आपको नाम आता है? एक मिर्ज़ा ताहिर ने किया है, सर इनको छोड़े, मैंने उनकी किताबें लाजमी पढ़नी है, मैंने अपनी किताबें पढ़नी है। मुझे नहीं मैं आपको फर्क बता रहा हूँ भाई, अगर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, आप पेन उठाएं और सफा नंबर लिखें जो मैं आपको बताने लगा। ये है जी इनके तर्जमा कुरान का, जो आजकल जिस पर हाई कोर्ट में भी मुकदमा गया था और फायज ईसा ने एक जाली फैसला दिया था। इसका नाम तफसीर सगीर है, इसका सफ़ा नंबर 651 है, 651। ये सूरह ज़ुखरफ है,
इसकी आयत नंबर 64 का तर्जमा कर रहा है। और वैसे ये तर्जमा इसको ऐसे करना नहीं चाहिए था, इसकी बड़ी वजह है, ये आयत सारे नोट करें। और तफसीर सगीर का हवाला सफ़ा नंबर 651। मरज़ई आपसे पूछेगा कि भाई कुरान में कहां लिखा है, मुझे दिखाओ कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। क्यों भाइयों ये सवाल करता है कि मरज़ई नहीं करता? बिल्कुल बिल्कुल सर, पहला सवाल ये होता है डॉक्टर साहब इनका। हाँ ये देखें जी, यहां पर लिखा हुआ है, ये गलत तर्जमा है, ये याद रखें, मैं आपको गलती अभी बताऊंगा। ये आयत है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलम्मा जाअ ईसा बिल बय्यिनाति क़ाल क़द जिअतुकुम बिल हिकमति व लउबय्यिन लकुम बअदल्लज़ी तख्तलिफून फ़ीह फत्तकुल्लाह वअतीऊन। मरज़इयों का तर्जमा सुने जी, ये आप उन्हें दिखा दिया करें आयत, कहना कि पुत्र है तेरा और लानती मौत जेड़ा सी ना मुस्लिम मौत वो लिख के गया। तर्जमा मरज़इयों ने लिखा है, और जब ईसा अलैहिस्सलाम बेसते सानिया में निशानात के साथ आएगा, अलैहिस्सलाम तो हमने अपनी तरफ से लगाया, ये कुत्ते नहीं लिखते, तो वो ये कहेगा कि मैं तुम्हारे पास हिकमत की बातों के साथ आया हूं। क्या समझे जी, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे या नहीं आएंगे? डॉक्टर साहब बेसत सानिया का जिक्र कर रहे हैं ये। नहीं तो बेसते सानिया दोबारा आने को ही कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। बेसत कहते हैं जिसे मुकर्रर किया जाए, मुकर्रर किया गया। सानिया मतलब दूसरी मर्तबा, ठीक है। तो बेसते सानिया से आप समझते हैं कि दूसरी बेसत किसी और शख्स की होगी, ये धोखा तो ये अपनों को देते हैं। बेसते उनकी बेसत तो हो चुकी है, लेकिन बेसते सानिया का मतलब है कि मुकर्रर करना दूसरी मर्तबा, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे या नहीं आएंगे इसके मुताबिक? बिल्कुल दोबारा पढ़ देता हूं भाइयों, सुनो और से मरज़इयां नु दिखाओ लानतियां नु। यहां लिखा है कि वलम्मा जा ईसा बिल बय्यिनाति क़ाल क़द जिअतुकुम बिल हिकमति व लउबय्यिन लकुम बअदल्लज़ी तख्तलिफून फ़ीह फत्तकुल्लाह वअतीऊन। और जब ईसा अलैहिस्सलाम बेसते सानिया, उसने बेसते सानिया ब्रैकेट में लिखा हुआ है भाइयों, बेसते सानिया, मुझे उस पर भी इतराज नहीं है, निशानात के साथ आएगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम निशानात के साथ आएगा तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारे पास हिकमत की बातों के साथ आया हूं, और इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें बाज वो बातें समझा दूं जिनमें तुम इख्तलाफ करते हो, बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। भाइयों ये आने का जिक्र है या मरने का जिक्र है मरज़इयों ने किया? मुझे ये बात समझा दे कोई भाई। क्यों अली भाई? जी डॉक्टर साहब ये आने का जिक्र है। ये जब वो वापस दोबारा से आएंगे, माइक खोल कर रखे अपना। जी 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 जी, वो जब दोबारा आपने नोट किया ना मेरे भाई ये हवाला? जी जी मैंने हवाला नोट किया। यहाँ पे मैंने एक बात पूछनी थी, जो ये है कि वो जब वापस दोबारा आएंगे तो उस वक्त ये बयान करेंगे, या ये जब वो बनी इसराइल में आए थे तो उस वक्त उन्होंने? नहीं आप दोबारा सुन ले जी उनका तर्जमा मेरे भाई, दोबारा और से सुने। मैं तो कादियानियों का तर्जमा पढ़ रहा हूं। मैं जो बात आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैंने जो उनसे सवाल करना है मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, ताकि मेरे सवाल में थोड़ी सी मजबूती हो। मजबूती सर ये है, वो आपके हवाले से ही होगी, और आप उसमें पीछे कहेंगे कि मतलब कह लें कि आप पीछे वो होंगे मेरे इस सवाल में। वो ये है कि वो सवाल ये है कि ये जो आयत आपने पढ़ी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और हाँ वो ये जो का सीगा है ना, वो कह रहा है कि आएंगे, आए नहीं, पहली मर्तबा आएगा नहीं है, आएंगे। आप दोबारा सुने मेरे भाई एक मर्तबा। ये आयत नहीं मेरा सर, मैं जो खुद अपने आप को एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं आपकी कंफ्यूजन की वजह बता देता हूँ मेरे भाई। ये उस वक्त थे जब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में आए थे। ना ये दूसरी मर्तबा था वो, तो ये जब ये दूसरी दफा का जिक्र कर रहा है भाई। बेसते सानिया उसने लिखा है कि दूसरी दफा जब मुकर्रर होंगे, बेसते सानिया लिखा है ना उसने। मैं आपको तर्जमे की गलती बता रहा हूँ जी। आप देखें, आपको मैं बता रहा हूं कि ये तर्जमा गलत है। आप सुना आपने मैंने क्या कहा? ये तर्जमा गलत है। लेकिन वो जाहिल शख्स था ना जिसने ये तर्जमा किया, वो उसका नाम मुद्दा था, वो एक कान से आंख से काना भी था। देखें वो तर्जमा कर रहा है, और जब
ईसा अलैहिस्सलाम निशानात के साथ आएगा, और ब्रैकेट में लिखा है बेस्ते सानिया में, यानी कि दोबारा दूसरी मरतबा। सानिया कहते हैं सेकंड टाइम्स, बेसत कहते हैं टू बी अपॉइंटेड, व्हेन ही विल बी अपॉइंटेड सेकंड टाइम। आप समझे हैं मेरी बात भाई? हाँ जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, तो बात मैं सबके लिए बता रहा हूं कि जब कोई मरज़ई पूछे ना, उसको कहो कि या पुत्र है लिखिया है तेरी किताब के बेस्ते सानिया होएगी। अब देखें कि ये उसने मुस्तकबिल में कहा है, और कहा है कि दूसरी मर्तबा जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इसके बाद वो जितनी मर्जी तावीलें करें उनसे मुझे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन उसने कुरान का तर्जमा गलत किया है। ये फेल मुस्तकबिल यानी मुजारे के दो हिस्से हैं, प्रेजेंट टेंस जिसको हाल कहते हैं, फेल हाल, और फ्यूचर टेंस फेल मुस्तकबिल। अरबी ज़बान के कायदे जरा अलग है। और फेल माजी जो है यानी पास्ट टेंस को अरबी ज़बान बड़ी सख्ती से अलग करती है। ये आयत असल में पास्ट टेंस में है, आप समझे हैं? अब उसने अपने आप को कवर करने के लिए इस पर एक नोट लगाया हुआ है, उसको नोट नंबर 5 कहते हैं, और नोट नंबर 4 और 5 नीचे पढ़े, ये इनकी तफसीर है। नोट नंबर 4 में मिर्जा महमूद मुर्तद लिखता है, इस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेस्ते सानिया का जिक्र है। कहते हैं उनके दोबारा आने का जिक्र है। भाइयों सुना है तुमने? मरज़इयों की किताब सफा नंबर 651 ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने का जिक्र कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर। कहता है नंबर 4 पर इस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेस्ते सानिया का जिक्र है, यानी बेसत कहते हैं टू बी अपॉइंटेड, सानिया मीन सेकंड टाइम, दूसरी मर्तबा मुकर्रर होना, नबूवत का मुकर्रर होना। क्योंकि ऊपर की आयत में भी इसका जिक्र हुआ है। यह भी धोखा दे रहा है आपको। मैं ऊपर की आयत है, वला यसद्दूनका कुमुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। यहां पर आपको नजर आया कि हक से दूर हो जाने वाले शख्स को तुम सीधे रास्ते से नहीं रोकते, और वो तुम्हारा खुला खुला दुश्मन है। तो इसमें तो कोई ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं हो रही। ये आपने मुझसे पूछा था कि तर्जमा कहां गलत है। मेरे भाई ग्रामर के लिहाज से ही गलत है। और आगे वो लिखता है चूंकि उसने फेल माजी को मुस्तकबिल में बदला है लोगों को धोखा देने के लिए, तो वो नंबर 5 पर लिखता है, कई जगह साबित किया जा चुका है कि माजी बमैने मुजारे भी आता है। देखो फिक्हा अल-लुगल फ़ालबी या इस किस्म का लफ्ज़ है। आप मुझे बताएं मेरे भाई, ये उसको भी पता था कि ये मुजारे नहीं है, ये मासी है। जब वलम्मा जा ईसा बिल मय्यनात, जब ईसा अलैहिस्सलाम आए निशानात के साथ, काला कहा कज्जे तो कुम, कि मैं तुम्हारे पास आया हूं। इन्होंने तो लिखा है आएगा। आपको मैंने असल हकीकत भी बता दी है। आप मर्ज़इयों से जाकर पूछें, और लानतियों है की लिखे है तर्जमे च। ये मेरे भाई एक मिसाल है। आपको वो जो सवाल पूछने वाले हैं मेरे भाई, आपको साफ की बात सर मैंने अपने आप से अहद कर लिया। मैं तो पहले ही 2-3 दिन से मैं इतना कि थोड़ा स्ट्रेस में था। मैंने नमाज, जी अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी अब आ रही है। जी जी, मैं कह रहा हूँ सर, मैं तो पहले ही 2-3 दिन से इतना स्ट्रेस में था, मैंने पहले ही उनकी मस्जिद में जाना छोड़ दिया था। मैं हालांकि खुद घर ही नमाज पढ़ रहा हूँ, और जुम्मे के लिए भी मैं तुर्कों के पास चला जाता हूँ, उधर पढ़ता हूँ। नमाज मैंने इधर घर में ही पढ़नी शुरू कर दी है। वो इसीलिए क्योंकि मुझे जब थोड़ा शको शुबा हुआ था तो मैंने फिर उस तरफ नहीं जाना शुरू किया। हालांकि ये देखा जाए तो जहाँ पे मेरी रहायश है यहाँ से मुझे पैदल कोई 15 मिनट लगते हैं। मैं 15 मिनट की वॉक है। तो वो जो लड़का मुझे लेके भी आया था, मैंने उसको भी कहा कि यार आप जाओ, मुझे काम है। मतलब मैंने उसे साफ इनकार नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसे कहा कि यार आप जाओ, मैं ना पढ़ लूंगा।
تو میں اسی وجہ سے سر آپ سے یہ سارا جو بھی آپ نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے میرا اتنا علم نہیں ہے، میرے نالج میں اتنی چیزیں نہیں ہیں، نہیں کوئی حرج نہیں میں ہے، بھی اس پہ ریسرچ کروں گا، میں بھی ایز اے طالب علم اس کے اوپر میں بات کر کے اس کا نالج گین کروں گا، پھر میں بھی اس کے اوپر دیکھوں گا کیا غلط ہے. اور میں دوسری بات اگر کسی کے ساتھ اگر بحث کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. اب میں آپ کو ایک آئی اور ٹی کا ترجمے کی میں بات بتا دوں بھائی، یہ بہت ضروری بات اب آپ کو بتانے لگا. آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے؟ جی قرآن پاک میں نے پڑھا ہوا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، لیکن نہیں آپ بات سنیں آپ میری بڑے غور سے. جی الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ آپ نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ کے شروع میں لکھا ہے الف لام میم. سورہ مریم کے شروع میں لکھا ہے کاف ہا یا عین صاد. اس میں یہی لکھا ہوتا ہے الف لام میم، اس میں نیچے انہوں نے کوئی وضاحت نہیں دی ہوتی، آپ صاف جانتے انہوں نے ہیں الف لام میم. اس کا ترجمہ کبھی آپ نے پڑھا کسی جگہ پر؟ نہیں سر نہیں پڑھا. آپ جانتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں 7 جگہوں پر ایسے حروف آئے ہیں، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم، اس طرح 7 جگہوں پر ہے. ان کا مطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بیان کیا. آپ سن رہے ہیں میں نے کیا کہا؟ رسول پاک نے کہا کہ اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے. جی وما میں سن یعلم رہا ہوں سر، آپ تاویلہ بیان کریں، الا اللہ. میری پوری توجہ آپ کی طرف ہے. میں ہاں نہیں میں آپ سے اپنا بتا رہا سارا ہوں. کام چھوڑ کے سر فل توجہ میری آپ کی طرف ہے، آپ کریں بات، میں سن رہا ہوں. ہاں یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ اور مطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ان کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان کا مطلب صحابہ رضوان اللہ علیہ نے بھی نہیں بیان کیا، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تبع تابعین نے بھی نہیں کیا، تبع تابعین نے بھی نہیں کیا، اور ائمۃ المسلمین میں سے آج تک اس کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا. آپ جانتے ہیں ان کے تفسیر صغیر جو ترجمے اور جعلی لانتی تفسیر والی کتاب ہے، اس میں ہر حروف مقطعات کا ترجمہ اور معنی درج ہے. اس نے لکھا ہے الف لام میم کا مطلب ہے ان اللہ عالم ہو، میں اللہ خوب جاننے والا. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، جب صحابہ نے کچھ نہیں کہا، تب تابعین نے کچھ نہیں کہا، تبع تابعین نے کچھ نہیں کہا، ائمۃ المسلمین نے آج تک نہیں کیا، اسلامتی نے، اس مرتد نے جو زناکار تھا شدت کا اور دنیا کا ہر گناہ کرتا تھا اور زندیق تھا، اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. آپ اس بات پر کیا کہیں گے؟ وہ ترجمہ قابل قبول ہے آپ کو؟ ہاں جی بتائیں، میری بات پوری ہو گئی. تو میرا ایک سوال ہے سید صاحب. نہیں میں بھائی سے ذرا پوچھ لوں. کیوں بھائی آپ کو پتہ لگا؟ میں آپ مائک کھولیں اپنا، آپ کو پتہ لگا میں نے کیا؟ آپ وہ ترجمہ پڑھیں گے جو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سری خلاف ورزی ہے اور کہتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جاننے والا ہوں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ان لعنتیوں کی مسجدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُمْ فِيهِ عَبَدًا، اور ان میں بھول کر بھی عبدالعباد تک قدم نہ رکھ. ادر دین کوئی دوسرے پاکستانی انڈین اور سری لنکن کمیونٹیز والے اتنے سٹرونگ نہیں ہیں. مطلب انہوں نے یہاں پہ یہ ابھی انٹرنیٹ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ یورپ میں سب سے زیادہ جو مسجدیں ہیں وہ ان کی ہیں، سب سے زیادہ جو فنڈ ریز کرتا ہے. غلط بات پتہ نہیں سر، یہ گوگل میپ پہ میں آپ سنیں، نہیں آپ سنیں، آپ غور سے سنیں جو میں کہنے لگا ہوں. میں لندن کے قریب رہتا ہوں، انگلینڈ میں. لندن میں مسلمانوں کی کتنی مسجدیں ہیں آپ جانتے ہیں؟ آپ نے کبھی گوگل کیا؟ سر ابھی کر لیتے ہیں، کریں. لندن لکھیں، لندن میں مسلمانوں کی مسجدیں لکھیں، ماسکس ان لندن، آپ یہ لکھ دیں وہاں پر. میں بھی آپ کے ساتھ ہی گوگل کر لیتا ہوں تاکہ ہم دونوں وہ صفحہ دیکھ لیں. سر اس میں تو وہ مختلف تعداد آ رہی ہے، لیکن زیادہ تر وہ بتا رہے ہیں کہ جو لندن میں زیادہ تر مسجدیں ہیں وہ ان کی ہیں. یہ کیا سر، ایک منٹ،
तुर्कियों की सर ज्यादा बता रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको टोटल मास्क मुसलमानों की बताता हूँ, 1500 मस्जिदें नहीं हैं। सर, मुसलमान तो फिर सारे ही मुसलमान हैं। हाँ सर, हम मतलब सबको तुर्कियों मुसलमान की- मानते हैं। नहीं, तुर्क जी, जी, हो, तुर्कियों की- सऊदी हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, अगर वो इस्लाम पर कायम है तो मुसलमान है। जी ठीक है जी। मुसलमानों की 1500 मसाजिद हैं लंदन में। ठीक है, आप जानते हैं कादियानियों की कितनी है? सर, यहाँ पे तो ज्यादा है। मेरे पास जो अभी गूगल मैप पे शो हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा है किसकी? मुसलमानों की। अगर टोटल अगर आप देखें ना, टोटल मस्जिदें अगर देखी जाएं ऑल ओवर, अरबी लोगों की और इन तुर्कियों की, हाँ, और मुसलमान ईरानियों की। हम जी, जी। मुसलमान सबको मानते हैं। आप बताएं जी, कितनी? 1735 बता रहा है गूगल। लंदन में? नहीं, ऑल ओवर सर, ऑल ओवर यूके में। 2000 से ऊपर हैं आप। ठीक है, ऑल ओवर पता नहीं सर, यहाँ पे 1735। हाँ, वो देखें, ये पुराना है। ये हर साल एक किताब छपती है यूके में, जो मुस्लिम एसोसिएशन की, वहां पर एड्रेस दर्ज हैं। तो टोटल यूके में 2000 से 2200 के करीब हैं आज, और लंदन में 1500 के करीब हैं। उनमें मेजॉरिटी लंदन में है। आपको ये हैरानी होगी। आपको पता है कि कादियानियों की कितनी मस्जिदें हैं लंदन में? अब आप इनकी गूगल करें। इन्होंने तो इंटरनेट पर बड़े जोर शोर से अपनी मस्जिदों की फोटो लगवाई हुई हैं, फजल मॉस्क और लंदन मॉस्क और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, और बैतुल फतूह मॉस्क। आपको तस्वीरें कादियानियों की मिलेंगी, क्योंकि हम मुसलमान बड़े इस मामले में वीक हैं कि इंटरनेट पर कब्जा करें। आपने देखा कादियानियों की कितनी मस्जिदें हैं? अहमदिया मॉस्क लिख लें इन लंदन। हाँ जी, आपने क्या गूगल? वो कर रहे हैं डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से। हाँ हाँ जी, करें। हम तो सबूत के साथ बात करते हैं। डॉक्टर साहब इस क्वेश्चन के बाद मेरे शायद भाई ये मलिक साहब का भी क्वेश्चन ले लें। हाँ, वो लेते हैं। आप ये पूरा कर लेना सवाल अपना। जी, ये जी बिल्कुल डिबेट डॉक्टर। मौजूद से फिर हट जाएंगे ना हम तो। मलिक साहब माजरत चाहता हूँ वेटिंग के लिए, सॉरी। नहीं, कोई बस मसला थोड़ी देर, इस सवाल के बाद हम मलिक साहब से बात। आप भाई बताएं कितनी हैं मस्जिद के नाम पर मिर्जवाड़े कितने हैं लंदन में? मतलब 40 की आवाज है, फिर उनकी कॉल आ गई कोई। ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ। नहीं ना, तो ना, चुप ना, कर ना। दो थोड़ा। वो बंदा वाकई कंफ्यूज है, क्योंकि वो वहाँ पे नया गया। तो जब कोई बंदा आता है तो उसको उसके नाले पता भी जी, करो शाहद भाई मैंने की तो फिक्र वफात ना नहीं करें, होगी। जो भी है ठीक है। जी तौफीक साहब। सर, गूगल मैप पे तो 38 बता रहे हैं जो बिलोंग कर रही हैं इस। 38 ये हैं आउटर लंदन को मिलाकर। लंदन मेन में इनकी 809 है। 30 भी लगा लें आप। मुसलमानों की तो 1500 है। आप कैसे कहते हैं कि ये ज्यादा है? आप मुझे बताएं। और ये इनमें से अक्सरियत 3 बेडरूम 2 बेडरूम हाउस है। आप जानते हैं इस बात? मुसलमानों की मसाजिद वो हैं जिसमें सैकड़ों हजारों लोग आ जाते हैं। जी सर, मैंने अभी ये बाकी भाइयों की बात सुनी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह ना, रहा आप है। यही भूल सर जाएं। मसला है हमारा। नहीं, कोई बात सर, नहीं, आप यही उसको तो भूल मसला जाएं। है। मैं सर पिछले दिनों में भी एक ग्रुप में गया था, तो मैं उधर भी अपनी यही बात बता रहा था, और पीछे से ना। हाँ, नहीं, देखें तौफीक साहब, एक बात मेरी अर्ज सुन ले। मैं सब भाइयों को भी बताना चाहता हूं। नहीं अली भाई, आप बात सुने मेरी। जो शख्स ये कहता है कि मैं मुसलमान हूं, आपको मानना पड़ेगा कि वो मुसलमान है, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं। आप फिर कहेंगे कादियानी भी तो कहते हैं मुसलमान, लेकिन कादियानियों का तो दिल चीरा पड़ा है हमारे सामने। जिसको वो मानते हैं उसकी बेशुमार तहरीरें हैं, सब सिंदीकाना है। लेकिन जब कोई ऐसा शख्स कहता है जिसके पीछे ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो आपको मानना होता है। हम भी मानते हैं। मेरी नजर में आप भाई पक्के मुसलमान हैं, जब तक आप खुद ना इनकार करें। अब बात करें।
جی سر میری بات ہو گئی ہے, باقی بھائیوں کی بھی بات سن لیں. ہاں چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے اچھا لگا. آپ جو مرضی سوال کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب آپ دوبارہ کبھی مت کہنا کہ ان کا ترجمہ وہی ہے جو ہمارا ہے, بلکہ وہ کتاب پڑھ لینا اور میری ہر بات کی تصدیق کرنا. السلام علیکم ملک صاحب, آپ کیا حال ہے آپ؟ نہیں سر میں نے ترجمے کی بات ہی نہیں تھی کی, میں نے عربی کی بات کی تھی. نہیں عربی وہی ہے میرے بھائی, عربی میں فرق نہیں ہے قرآن, لیکن قرآن پاک کو انہوں نے میوٹیلیٹ کیا ہوا ہے. آپ تذکرہ نام کی کتاب پڑھ لیں جو مرزا قادیانی کے بعد بنائی گئی, وہ قادیانیوں کا قرآن ہے, اور اس میں قرآن پاک کی جتنی توہین اور میوٹیلیشن ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گی. جزاک اللہ. ہاں جی ملک صاحب. السلام علیکم سید صاحب, میں بڑے غور سے سن رہا تھا آپ کو. ظاہر ہے کہ آپ کا علم یا ایسی بات جو ہمارے دل و دماغ کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آتی ہے اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھیں. تو یہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے دنیاوی کامیابی اللہ کے ہاں کوئی وہ معنی نہیں رکھتی. مسلمان کا غریب ہونا یا امیر ہونا وہ تو خیر کوئی معاملہ نہیں. میرا ایک سوال یہ ہے, جیسے ہم مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پہلے جتنی انبیاء کرام یا رسول تشریف لائے تو ہمارا ایمان تو سب کے اوپر ہے. احمدی چونکہ ختم نبوت کے منکر ہیں, تو یہ کیا اپنے آپ کو تو وہ رسول یا نبی جو بھی کہیں, کیا یہ مسلمہ بن کذاب کو بھی اپنے ہی خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں؟ سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ اس کے بھائی ہیں. کیونکہ یہ جب ہم سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے بعد جھوٹی نبوت کے دعوے دار اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت سے پیدا کیے, اور اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیں, اور حدیث یہ بڑی سند کے ساتھ ہے اور بہت ساری کتابوں میں درج ہے, اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, کہ میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے, ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے, حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر نبی نہیں آ سکتا, رسول تو بالکل ہی نہیں آ سکتا. تو قادیانیت قرآن اور سنت کی صریح خلاف ورزی کا نام ہے. وہی خلاف ورزی جو مسلمہ کذاب نے, اسود الانسی نے, طلحہ بن اسدی نے, سجا بن حارث نے کی. صحیح فرمایا. بس یہی سوال تھا. خیر میں اصل میں تو بس آپ کو سننے کے لیے آتا ہوں, جب بھی مجھے کوئی مل جاتے ہیں آپ براڈ کے اوپر, تو میں اپنے, کیونکہ میں کوئی اتنا نہیں ہوں, مجھ سے کہیں زیادہ جاننے والے لوگ یہاں موجود ہیں, آپ اس بات پر یقین کریں. وہ تو ہوں گے, لازمی ہوں گے, اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ سیکھتے ہیں, ہمارا علمی بصیرت اتنی نہیں ہے, ہمیں ایک بشری کمزوری کے ساتھ دنیا میں ہے, تو اس وجہ سے جو بہتر ہم سے ہے ہم ان کو سن کے سمجھ کے کم از کم ہمارا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, تازہ ہو جاتا ہے. اور دوسرے ایک صاحب کہہ رہے تھے مجھے کہ بعد میں بات کرنی ہے. سر مجھ سے اگر کوئی چیز پوچھنی ہے تو پوچھ لیں آپ. ہاں پوچھیں بھی, انہوں نے ملک صاحب سے کچھ پوچھنا ہے. ہاں انہوں نے کہا بعد میں بات کروں کے ساتھ. جی شاہد بھائی کریں بات. ہاں وہ آپ سے پرائیویٹ میں بات کرنا چاہتے ہیں ملک صاحب. علی بھائی بہت اچھے آدمی ہیں. ملک صاحب میں نے بس یہی کہنا تھا کہ آج جب سے وہ سلسلہ ہوا ہے نا وہ اس عورت کا, جی آج بھی اس نے اتنی شاطمیت کروائی اپنی براڈ پہ بٹھا کے. اچھا ٹھیک ہے جی, میں وہ میں آپ کو عرض کر دوں, تھوڑا سا میں عرض کر دوں. میں سید صاحب معذرت کے ساتھ تمام دوستوں کے ساتھ, نہیں آپ بات کریں جی, کیونکہ ہم مائیں بہنیں بیٹیوں والے ہیں. میری اپنی 4 بیٹیاں ہیں, تو میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ہر خاتون کی. تو میں دوسری پارٹی سے بھی بات کی تھی, پتہ نہیں شاید آپ ہوں گے, تو کیونکہ ایک مردانگی میں گالیاں کسی عورت کو دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. تو ان بندوں کو میں نے سمجھایا, شاہد صاحب سے بھی بات کی کہ دیکھیں, وہ تو خیر نہیں گالیاں نکال رہے تھے, دوسرا وہ جبرو خان پتہ نہیں کیا نام ایسے تھے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ ایک عورت کو عورت سمجھ کے, ماں بہن سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں, گالیاں نہ دیں. اگر کوئی چیز کہیں لغزش ہے یا حساب کتاب ہے تو چلو بیٹھ کے ہم تسویہ کروا سکتے ہیں.
तो फिर मैं उनकी ब्रॉड पे भी गया, आज भी गया था, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी ब्रॉड पे ना आया करें, खातून ने कहा। मैं कहा जी मुझे कोई शौक़ नहीं है। उसकी वजह यह है, जब हमने दोनों तरफ से गालियां सुनी, क्योंकि आप कुरान और हदीस तफसीर बताती हैं, करती हैं, फिर गालियां गलोच की बात हमारे कानों में आती हैं, तो वो ईमान का तकाजा है कि उस बात का असर नहीं हो सकता फिर किसी पे। तो उन्होंने आज मुझे कहा था कि आप मेरी ब्रॉड पे ना आया करें। तो मैं तो इस वजह से दोनों तरफ से कोशिश कर रहा था कि अल्लाह रहम करे, कि औरत को गालियां देना मुनासिब नहीं। मलिक साहब देखें, पता क्या है, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ कि मेरी ब्रॉड पे पिछले 2-3 दिन से इस तरह की गुफ्तगू और ये कुछ चल रहा था। लेकिन पता क्या है, मैं एक बात आपको बताऊं कि जब वो कहते हैं ना कि जुल्म हद से बढ़ जाए ना तो आवाज़ नहीं उठाई जाए, तो ये भी हम भी गुनाहगार होते हैं। ठीक है, उस औरत ने जिस तरह से लोगों के पैसे बटोरना शुरू किए, और ये कोई एक वाक़या नहीं है, तकरीबन उसके ऊपर 62 लाख रुपए का। अच्छा अली भाई, एक रिक्वेस्ट करूं आपसे जी। सैयद साहब को सुन लेते हैं, डॉक्टर साहब को, फिर बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, तो इसके बाद जिक्र करेंगे, क्योंकि ये जो वो उनका टाइम ज्यादा कॉस्टली लगता है मुझे। अच्छा बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा था कि शायद आपके पास टाइम कम है। नहीं, मेरे अगर आप बैठे हुए हैं तो नो प्रॉब्लम, मैं भी इधर बैठा हूँ। मलिक साहब, तौसीफ साहब। जी सर। तौसीफ साहब से बात कर रहा हूँ। तौसीफ साहब, ज़रा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिएगा। आप कहते थे कि उनका कुरान सेम है और ये सारा कुछ सेम है। सीक्रेट बुक ये आ गया जी, कादियानी लखाम, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जो एक और पिछली दफ़ा इंकिशाफ हुआ था कि तफसीर सगीर से कुछ ऐसे, वो पता नहीं कौन सी आयत थी जिसमें जब तर्जमा किया जाता था ना, हमारे कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आता था, वहाँ पर इन्होंने अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम तक वहाँ से गायब कर गए हैं ये कुरान शरीफ से, कुरान शरीफ के तर्जुमे में। तो सीफ साहब अगर आप देख रहे हैं तो मैं अच्छा सर, वैसे इनके जो है ना, आप एडिशन चेक करें तो पिछले 4-5 साल से और परसेंट टुडे अगर आप चेक करें तो एडिशन में कोई सेम चीज़ें नहीं मिलती। कभी इनके चैप्टर चेंज हो जाते हैं, आगे पीछे होते हैं, वो कंटिन्यू, जैसे कुरान मजीद का एक कंटिन्यू एक चीज़ हम पढ़ते हैं, इनकी किताबों में एडिशन चेंज होते रहते हैं। यस। अच्छा जी, ये देख लें जी, मैं आपको दिखाता हूँ तफसीर सगीर मरज़इयों की। ये देखें जी, तफसीर सगीर कुरान शरीफ, एक सेकेंड, बशीरुद्दीन, ठीक है। अब यहाँ से जब ये कुरान शरीफ शुरू होता है, तौसीफ साहब आप देख रहे हैं ये सारा? जी सर, मैं देख रहा हूँ। माजरत के साथ मुझे ना अब ज़रा ये सेशन छोड़ना पड़ेगा, बहुत बहुत माजरत के साथ। मेरी ना एक अर्जेंट मीटिंग है प्रोफेसर के साथ, तो माजरत के साथ सर, आप भाइयों से मिलके गपशप लगा के शाहद भाई से मैं इंशाल्लाह राब्ते में रहूँगा। और सैयद साहब जज़ाकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, आप एक हकीकी रहनुमा हैं, और इंशाल्लाह आपसे भी गपशप होगी। माजरत के साथ ज़रा मुझे ना, मैं खुद भी दुख हो रहा है, मुझे ये ना ज़रा सेशन छोड़ना पड़ा है, तो फिर इंशाल्लाह। नहीं अल्लाह जज़ा दे, आप आए, बहुत अच्छा लगा।
तो गाय बगाए आपको और भी बहुत अल्लाह कुछ हाफिज़। बताएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह। बहुत शुक्रिया तफसील का। नहीं डॉक्टर साहब, इनके मिर्ज़वाड़ों के बारे में, सवाल के बारे में जो आपसे इंफॉर्मेशन मिली है और हमने हकीकी गूगल से सर्च भी कर ली है, वो मुझे पता नहीं थी। नहीं, ये और मिर्दवाड़ों की हालत ये है मेरे भाई, पता लग गई है। 2-3 बेडरूम का घर है। वो जो फजल मास्क लंदन जिसे कहते हैं, उसमें मुश्किल से 50 आदमी बैठता है, 50-60 आदमी जनाब। वो इनकी जामिया, फिर बैतुल फतू नाम की एक है, वो बनी हुई है जी रेलवे ब्रिज के ऊपर। मुझे तो पहली दफा मैंने देखी तो मैंने कहा भाई ये गिर नहीं जाएगी? कहते नहीं नहीं फिक्र ना करो। नहीं, मैं क्या तले तो बुनियाद है ही नहीं। कहता नहीं जी हो जाता है आजकल। अच्छा, यहाँ कनाडा में भी मलिक इनका एक साहब, मरकज है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। शायद भाई मैंने जस्ट डॉक्टर साहब से एक सवाल करना है, फिर मुझे नीचे उतार दीजिएगा। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जब हम कुरान पाक खरीदते हैं तर्जुमे वाला, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मर्ज़इयों का ट्रांसलेट किया हुआ है कि यहाँ दूसरा? जरा प्लीज इसकी पहचान बता दें हमें। हाँ, वो मिर्जाई आमतौर पर ना वो मिर्जे का और अपने नाम शामों के साथ वो जाली अलकाबात लिखते हैं और अक्सर ये अहमदिया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख लें उसका ट्रांसलेट। मैं आपको बता देता हूँ 4-5 हैं जो इनकी ज्यादा छापते हैं। सबसे ज्यादा ये तफसीर सगीर छापते हैं, उसको ये बा मुहावरा तर्जमा कहते हैं और इंतहाई गलत तर्जमा है। मैं कहता हूँ जिस कदर गलत तर्जमा वो है, एक एक सफ़े में हजार गलतियां हैं वहां पर। ठीक हो गया। तो दूसरा एक मिर्जा ताहिर का लिखा, वो मुर्तद जो था ना, उसकी अब क्वालिफिकेशन सोचें, उसको बीए करने भेजा इन्होंने। बाप की जामिया से तो उसने मुरब्बी का डिप्लोमा ले लिया, बीए करने भेजा। तो अंग्रेजों के यहाँ ना यू ग्रेड आपने सुना होगा, आप यूरोप में रहे ना, तो ABCD वाला पास होता है, डी वाला और ई वाला फेल होना शुरू होता है, एफ तो है ही फेल, पक्का फेल। अब कोई शख्स खाली पर्चा दे के आए ना तो उसको यू ग्रेड देते हैं, अनग्रेडेबल। मिर्जा ताहिर मुर्तद को Z ग्रेड उन्होंने दिया, इन्हें खाली पर्चा भी नहीं दिता उन्होंने, ना ही शक्ल दिखाई। ठीक है, तो ये ज़िनाकारी में मसरूफ था, यूरोप में घूमता फिरता ऐशें करता था। तो ये हालत है कुरान के तर्जमे लिखने वाले मुर्तद की। और लिखते ये ऐसे हैं कि दूसरों से लिखवा के अपना ऊपर नाम झाड़ देते हैं और उसको कहते हैं सुना मुझे। मैंने ऐसा करते देखा है इसको, तो सुनाओ, हाँ इस जगह पर इसका मतलब अगर आप ये कर दें तो कैसा रहेगा? कहते हैं जी बनता नहीं है अरबी में, तो मतलब इस जैसा तो बनता होगा ना। हाँ जी आप कहते हैं तो कर दे, और अगर आप इनकार कर दें ना ऐसा नहीं तो जनाब निकाल देता है। ये आदमी तो खलीफा की नहीं सुनता। आप देखें, ये देखें इटली, वेनिस और ये वेनेशिया, हाँ जी, ये मिर्जा मुर्तद काना जो है, हाँ जी, और साथ में ये वो क्या कहते हैं उसका नाम, वो नसरुल्लाह चौधरी, नसरुल्लाह चौधरी, हाँ जी, ये अय्याशी हो रही है जनाब। और इनकी हालतें देखें, कश्ती में बैठ के अय्याशी कर रहे हैं। हाँ नहीं, ये तो मेरे पास तस्वीरें हैं जी, न्यूड बीच पर इसकी हैं। फिर वो जहाँ पर ये नंगी औरतों का नाच देखने गया, फिर मुझे लोगों ने बताया, मतलब जब मैं इनके बारे में तहकीक करता था, मैं तो सही रिसर्च करता हूँ ना, मैं वो रिसर्च करता हूँ जिसके सबूत होते हैं। मिर्जाइया नु गलत बंदा लग गया जे। मैं तो बेशुमार लोगों की PhD MD को सुपरवाइज कर चुका हूं। मेरा तो रिसर्च का तरीका मुस्तनिद तरीका है दुनिया का, तो मैं उसी तरीके पर वो मैंने किताब लिखी है। और जब किसी को सनद के साथ मर्ज़ियत की लानत को पता करना होगा, वो किताब जरूर पढ़ लेंगे। अच्छा जी, मोहम्मद साहब, ये कौन साहब हैं जी? मोहम्मद चौधरी साहब जी। सर आपने कुछ बात करनी है? चौधरी साहब, चौधरी साहब अनम्यूट करें प्लीज। चौधरी साहब जी जी नहीं, चौधरी साहब ए मोहम्मद चौधरी साहब कौन है? चलो ठीक है फिर, थैंक यू। चलो फोत हो गए। नहीं, वो शिकायत करने आए होंगे आपकी ब्राड पर बैठ के। ये बड़ा प्रॉब्लम है इनका कि ऊपर आ जाते हैं फिर शिकायत लिखनी शुरू ये लोग
ये लोग करते क्या हैं, आपकी ब्रॉड की है ना तमाम रिकॉर्डिंग करके अपने मरकज़ में जाके फिर उस पर रिसर्चें करते हैं ये लोग, फिर जवाब तलाश करते हैं, जब तलाश करके दूसरी ब्रॉड पे जाके फिर वो अपने आपको पेश करते हैं कि जी इस बात का ये जवाब है। मलक साहब, मैं आपको एक अर्ज कर देता हूँ जी। मैंने इनको बड़े करीब से देखा है। मैंने ये जब इनसे वो सवाल किया जाता है जिसका जैसे हरूफ मुक़त्तआत का तर्जमा क्यों किया मिर्ज़ा मुर्तद ने, जी जी मैं समझ गया। सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी की, साहबा की, इस्लाम के मुंह पर तमाचा मारने की कोशिश की उसने, खबीस ने। तो मैंने इनके खलीफे से कहा, मैंने कहा जी आपने ऐसा क्यों किया? कहता है कि जी खलीफा भी नबी की तरह होता है, उसे खुदा ताला जिस तरह अंबिया को बताता है खलीफों को भी बताता है। ये उसका जवाब सुने। और मैंने कहा कि भाई आपको तो कोई नहीं मानता, तो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी तो जिंदगी में मानने वाले 10-12 लोग थे, हमारे तो हजारों में। मैंने कहा वो ईसा अलैहिस्सलाम थे, आप ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। तो फिर उसने मुझे कहा कि अगर आपको इसका बेहतर जवाब मालूम है तो आप तलाश करके मुझे बता दें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया है। तो इनकी ब्रॉड पे मैं वो रिसर्च करता रहता हूँ, जहाँ अहले इल्म लोग बैठे हों तो उससे बंदा मुस्तफ़ीज़ हो जाता है, मालूमात में इजाफा होता है। तो मैं समझा कि शायद कोई लिबाता तो वही इस्लाम वाला पहना हुआ है ना। बिल्कुल। उन्होंने मुझे उठा लिया, मलिक साहब आप कुछ बोलें, आप कुछ। मैं समझ गया कि ये दूसरा फ़िरका है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि हर रसूल की एक अपनी शरीयत लेके दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह ताला उनको देता है। नबी और रसूल में ये फ़र्क है, रसूल शरीयत के साथ आते हैं। आप जो कहते हैं, पहले तो ये बताएं कि मिर्ज़े को आप रसूल मानते हैं नौज़ बिल्लाह या नबी मानते हैं? अगर आप रसूल मानते हैं तो इन पे खुद इल्हामी अल्लाह ताला की तरफ से कोई कलाम जिब्राइल अमीन लेके आए हैं? अगर आए हैं तो वो अल्फाज सुनाए। तो वो बंदा जब फंस गया तो 2-3 और लेके आया, मौजू चेंज करके तो आपस में किसी और अपने बंदे को ले आए, गालम गलोच में उलझ गए। तो होता ये है कि जब एक कोई इनके पास या किसी के पास, बिलफर्ज मेरे पास अगर इल्म की कमी है तो मेरे से जब जवाब नहीं बन पड़ता तो मेरा मकसद है खामोश हो जाऊं, क्योंकि मेरे पास मैं लाजवाब हूँ, मैं सुनूं दूसरों के पास क्या इसके दलाइल हैं। लेकिन जो गालम गलोच पे उतर आता है बंदा, इसका मकसद ये है कि माँ सिवाय उसका दीन गालम गलोच वाला है, कोई राह हक पे अमल करने वाला वो बंदा है। सही बात जी। आपको पता है मिर्जा कादियानी का दावा रसूल का भी है और नबी का भी है। ये बात उसकी एक किताब एक गलती का अजाला के सफ़ा नंबर 1 और सफ़ा नंबर 2 पर लिखी है, और दूसरी जगहों पर और बहुत सारी जगहों पर उसने नबी, रसूल और मुल्हिम तक होने से इनकार किया है। मिर्ज़ा कादियानी की किताबें तजादात का ऐसा मजमुआ है कि एक लानती शख्स में भी इतना तजाद नहीं होता जितना और मिर्ज़ा खुद लिखता है। मैं आपको बताऊं कि मिर्ज़े के बारे में तो आप कुछ मत पूछें, ये बड़ा खबीस नस्ल का एक इंसान था, चूड़ा था। आपको पता है ना मिर्ज़ा काफिर खानदान से है जी, खाक रूप से सुपरवाइजर था और मैं नहीं कहता, कादियानी मेरे बहुत पीछे हैं और मैंने अपनी किताब में 87 सफ़े लिखे हैं इसके खानदान की बैकग्राउंड। ये तो अंग्रेज के दौर में इसने कहा था मैं मुसलमान हूँ, मेरा ये नाम है। पहले तो खाक रूप सुपरवाइजर था ये। नहीं सुपरवाइजर नहीं था, खाकरोब खानदान में पैदा हुआ। वाल्मीकि खानदान था और उन खाकरोबों का जो मौलाई यानी उनका जो खलीफा था ना, वो इमाम दीन था, इसका फर्स्ट कजन। ओ ऐसे हाँ, ये खाकरोबों के खानदान, वो कादियान में सिर्फ एक ही कबीला आबाद था, वो खाकरोब थे, मुगलाई कहलाते थे। मुगलाई मुगलों के चूड़ों को कहते हैं। ये इसका बाप भी मुगलाई था, इसके चाचे मामे सब, और इसने नाम बदले, अपने जाली शजरा नसब बनाया। आप देखें गुलाम सोंदी, इसकी दाई ने इसका नाम लिखा है गुलाम सोंदी, गुलाम अहमद नहीं लिखा, सोंदी, गुलाम सोंदी लिखा है उसका नाम, SONDI जी। और उसके बाद सोंदी कबीले में एक फैमिली का नाम था जो इनकी फैमिली थी है। इसने उनके अपने दादे का नाम अता बेग था, क्योंकि लाल बेग इनका नबी था, बाल्मीक इनका खुदा था, वो भी एक इंसान ही था।
लाल बेग इसका नबी था, और फिर बाद में मौलाई जो इनके सरबराह है उनमें से इसके दौर का मौलाई इमाम दीन था। इसका यारे गार, चोरी का, डाके का, जना का, शराब का, फीम का, चर्च का, वो सब इकट्ठा किया इन्होंने, क्योंकि ये उसकी मौलाई पन में हिस्सा चाहता था। कहता था मुझे अपना डिप्टी बना लो, उसने नहीं बनाया इसको, इसलिए इनके दरमियान बड़ा झगड़ा पड़ गया हुआ था। तो ये उस खानदान में पैदा हुआ जो काफिर खानदान था, खाकरोब खानदान था, मुगलाई थे। और इसने 27 साल की उम्र में जब इसको कहा गया कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे तो नबूवत का दावा कर दे या पीर बन जा, तो उस वक्त इसने अपने नाम के साथ अहमद लगा लिया। वरना देखें इसका नाम गुलाम सोंदी, भाई का नाम गुलाम कादर, किधर ना अहमद ना मोहम्मद, मुंह बोले बाप का नाम गुलाम मुर्तजा, उसके भाइयों का नाम गुलाम कादर, उसके दूसरे गुलाम महिउद्दीन। कहाँ है अहमद मोहम्मद? है ही नहीं है इनके खानदान। और जो अता बेग था उसको इसने अता मोहम्मद कर दिया, गुल बेग जो था उसको गुल मोहम्मद कर दिया इसने। हमारे पास वो हवाले भी मौजूद हैं जहां अता बेग और गुल बेग लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, कादियान की तारीख के रिकॉर्ड में। जब इसने दावे शावे किए थे तो उस वक्त बास अदालतों ने इसके दादा और परदादा का नाम लिखा हुआ है। और कादियानी धोखा देते हैं मुंह खोल के, ठा करके कि जे अता मोहम्मद, गुल मोहम्मद पक्का मुसलमान। और मैं कहता हूं इतना झूठ है इनकी किताबों में मलक साहब, आप कोई बात ही मत करें। चूड़ों का खानदान, और इसके भाई, इसके फर्स्ट कजन इमाम दीन ने एक और किताब लिखी, उसका नाम लिखा दो काफिरों की कहानी। मैंने पहले सोचा मिर्जा मुसलमान था, काफिर हो गया होगा। ना जी ना, उसने लिखा मिर्जा और इसका खानदान पक्का बाल्मीक यानी काफिर था। और दीदे हक आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप लिखें DID_E_HAQ फैक्ट चेक ब्लॉग, यहाँ सैयद होली स्पीड दोनों जगह से डाउनलोड हो जाएगी। तो वहां से आप इसको डाउनलोड करें, आपको पता लगेगा कि इसमें सबसे ज्यादा गालियां मिर्जे खानदान ने और इमाम दीन ने मुसलमानों को दी। आज कादियानियों से बात करो, वो कहते वो तो मुआनदे अहमदियत था। भाई मुआनदे अहमदियत कित्थों हो गया? मिर्जा तो उसे मौलाई चाहता था, चूड़ों का बनना चाहता था खलीफा, वो नहीं बनने दिया। तो फिर इसको मौका मिला तो ये बढ़ता ही चले गया, और उसने कहा बाल में तुम्हारा खुदा है, मैं भी खुदा बन जाता हूं। तो फिर दो काफिरों की कहानी लिखी इमाम दीन में। उसने कहा कि मिर्जा काफिर हो गया। काफिर कहां से हो गया? पहले बाल्मीक था, फिर उसने अपना मजहब छोड़ दी इस तरह से। और कहा कि इसको काफिर करने वाला दूसरा काफिर है। आपको हैरानी होगी, दूसरे काफिर का नाम उसने मौलाना मोहम्मद हुसैन बुटालवी लिखा, जो इसका क्लास फेलो और यार था एक जमाने तक, बाद में तो इसके खिलाफ हो गए बड़े सख्त। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन बुटालवी को भी काफिर कहा कि उसने मिर्जे को काफिर कर दिया। तो आप ये देखें, ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। अब मिर्जाई मुझे कहते हैं जो होली स्पिरिट पता नहीं कहता रहता है कि मिर्जा चूड़ा है। भाई मैं कहाँ कहता हूँ चूड़ा है? तुमने खुद लिख कर मुझे बताया कि तुम चूड़ों के खानदान को मानते हो, चूड़े यानू नबी मानते हैं। मैं तो किताबें देता हूं, मैंने हर एक को डाउनलोड कराई है। क्यों शायद साहब, है ताड़े को लीदे आके नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं डाउनलोड की थी, लेकिन मेरे को हैगी है, मैं WhatsApp भेजा ना ਹੁਣ शायद भाई मेरे को पई इन्नी दुनिया ਨੂੰ मैं डाउनलोड कराई है। मिर्जाई फिर भी कहंदे ने ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬੀ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, लेकिन ਉਹਨੇ गुस्से ਦੇ अंदर लिखी सी। अच्छा, गुस्से में लिखा उसने? हाँ जी, आप बैठे हुए थे सर, वो इधर एडमिट करके गया, कहता हाँ जी ये दीदे हक बिल्कुल इमाम दीन की किताब। हाँ ये देखें, ये भाई लगा भी रहे हैं उसको। ये डॉक्टर साहब, जो मैंने आपको एक बुक शेयर की थी अंदर की बात, वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि मिर्जे ने इमाम दीन नहीं वो मैंने बहुत पहले से पढ़ी हुई है वो। हाँ लेकिन क्या वहां पे क्या हो रहा है कि मिर्जा इल्जाम लगा रहा है इमाम दीन पे, इमाम दीन लगा रहा है इल्जाम मिर्जे पे। है चूड़े ही हैं ये पक्की बात है। नहीं चूड़े तो देख, मैं अली भाई मैंने अपनी तरफ मुझे तो खुद बड़ा शौक पहुंचा। मैं क्या मिर्जइयो लानती हो, मैं तो मान गया था कि तुम मुगल हो, उज़्बेकिस्तान से आए हो। मैंने कहा ये मुगलों का बिगड़ा हुआ लानती बंदा था मिर्जा, मुर्तद हो गया।
और मुझे तो हकीकत जब पता लगी तो मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। मैंने कहा अस्तगफुरुल्लाह, इतना झूठ। मैं आपकी बात डॉक्टर साहब इतना हंसता हूँ ना, डॉक्टर साहब कहते मैंने इतनी सर्च की, एंड में मुझे पता लगा ये तो चूड़े हैं। क्या किया है मेरे नाल? हाँ, ये बहुत बड़ी मैं बात कभी है चूड़े मेरे पे लिए। किताब ना लिखता। असल में डॉक्टर साहब, इंसान जब हक की तलाश में होता है ना, तो अल्लाह ताला जो मुतलाशी होते हैं उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। हम जैसे कम तालीम याफ्ता जो दुनियावी तो चलो है, लेकिन दीनी अल्लाह ताला हमें भी इनायत फरमाए। लेकिन मैंने देखा है जितनी इंसान स्ट्रगल करता है अल्लाह ताला उतनी बंदों से मिलाता है। मेरे एक दोस्त बन गए सऊदी अरब हैं, बड़े माशाल्लाह जामे उनका ये है, तो मैं उनके सामने यही चीज रखी है। कहते हैं ये भी कोई मजहब है? मैंने कहा तो आप लोगों ने तहकीक क्या की है कि कितनी दज्जाल इस वक्त इस्लाम की जड़ें काटने पे लगे हुए हैं। नहीं देखें, मुझे ऐसे पता लगा मलिक साहब कि मैं गया, मैंने कहा किताब लिखनी है, चलो ब्रिटिश लाइब्रेरी जाते हैं। यहाँ है ये कैमिडन टाउन के करीब ना, ह्यूस्टन स्टेशन से आगे जाए मैरिलबॉर्न रोड पर ना, तो दाएं हाथ पर ब्रिटिश लाइब्रेरी है। दुनिया की बड़ी मशहूर बेशुमार बड़ी लाइब्रेरी है, लाखों किताबें हैं वहाँ, मिलियंस ऑफ बुक्स है। अच्छा, आप तो इलेक्ट्रॉनिकली उस पर कहते हैं कि कोई बिलियन के करीब बुक्स हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने फलां टॉपिक, कहते ओ that's the Punjab in South East Asia in India। मैंने कहा हाँ, इसके एक आदमी के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो कहने लगी कि 2 ऑप्शन है, तुम खुद बैठ के ढूंढ लो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मतलब ऐसा बंदा चाहिए जो बड़ी मुस्लिम। तो उसने कहा कि तुम मुझे 75 पाउंड दो और थर्सडे आफ्टरनून में आ जाना, इस सब्जेक्ट का माहिर आएगा, वो तुम्हें बताएगा कि सर्च में क्या मौजूद है। अल्लाह अकबर। नहीं आप ही जाएं, वो आपसे पैसे लेंगे, आपको एक नहीं, माहिर से मैं मिलाएंगे। क्या होता हूँ डॉक्टर साहब। हाँ, तो हुआ ये कि मैं चले गया। मैंने कहा कि 75 पाउंड क्या चीज है, चलो लो और बताओ मिर्जा कौन था। अब जी थर्सडे को 2 बजे मैं गया तो एक बूढ़ा सा अंग्रेज था, तो उसने कहा कि आओ बैठो। मैंने कहता है कि यू वांट टू नो अबाउट मिर्जा कादियानी, मिर्जा गुलाम कादियानी। और उसने जो नाम लिया उसने कहा मिर्जा गुलाम सऊदी ऑफ कादियान। मैंने कहा नो, मिर्जा गुलाम अहमद ऑफ कादियान। कहता है नो, बॉर्न गुलाम सऊदी, कन्वर्टेड टू गुलाम अहमद। अल्लाह अकबर। मैंने कहा हाउ कम? तो उसने एक कागज की कॉपी निकाली जो लाडो का बर्थ सर्टिफिकेट था, इसने किसी से लिखवाया था। कहता है दिस इज अ वेरी रेयर डॉक्यूमेंट, somebody gave us once we were collecting the material, so you can have it। तो मैंने कहा कि दे दो मुझे। कहता है ये लाइब्रेरी के रिकॉर्ड में नहीं है, मेरे पास था, मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। तो वहां पर इसका नाम गुलाम सोंदी लिखा हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। तो फिर उससे मैंने पूछा कि टेल मी अबाउट हिम, वेयर ही वाज बोर्न। कहता है यू नो द फैक्ट दैट ही वाज फ्रॉम ए स्वीपर फैमिली। मैंने कहा व्हाट? ही वाज अ मुस्लिम, ही केम फ्रॉम उज्बेकिस्तान। तो वो मेरी तरफ देख के कितनी देर हंसता रहा। कहता है आई हैव हर्ड दैट स्टोरी मेनी टाइम्स, दैट्स ए कन्फेबुलेशन। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ कन्फेबुलेशन? कहता है दैट्स एब्सोल्युटली अनट्रू थिंग। The documents we have prove that he was from a sweeper family। तो वो किताबें निकाल के ले आया, दीदे हक, 2 काफरों की कहानी। कहता है दिल शुकुफ बाद में ले लेना। कहता है दैट इज फ्रॉम हिज ओन फैमिली। और फिर वो अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स निकाल के लाया। कहता है लुक, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड द चीफ ऑफ कादियान इमाम दीन, ही वाज़न्ट द वन। फिर उसने मुझे लपेल ग्रिफिन की किताब जो मैंने पहले भी पढ़ी थी दिखाई। कहता है कि लुक, ही हैज रिटन दैट मिर्जा गुलाम सोंदी वाज नेवर द हेड ऑफ द फैमिली और एनीथिंग, ही हैज बीन राइटिंग रॉन्ग थिंग्स, ही वाज अ कंपल्सिव लायर। उसके वर्ड थे कि दिस मैन, इफ यू सर्च अबाउट हिम, ही इज अ कंपल्सिव लायर।
تو خیر ایسی بہت ساری باتیں مجھے پتہ چلی، تو میں نے کہا کہ بیٹا اگر تو مجھے پہلے بتاتا میں ان پر لعنت بھیج کے گھر چلے جاتا، میں نے تو اتنا ٹائم خرچ کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ واقعی ایک تو ہماری جتنی بھی کواش ہیں یا جتنی جستجو ہے، میں تلاش تو اسی چیز میں رہتا ہوں، لیکن آپ نے جتنی جستجو کی، جدوجہد کی، ریئلی وی سلوٹ یو۔ نہیں کیا کریں، مطلب میں نے سوچا تھا کہ چلو تصدیق کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے خاندان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، شجرہ نسب میں آدمیوں کے نام بدلتا ہے، کہیں بیگ لکھتا ہے کہیں احمد لکھتا ہے، تو میں نے کہا اب کتاب لکھیں گے مستقبل میں ہو سکتا ہے لوگ اس کو ایز اے ریفرنس یوز کریں، تو پھر میں نے سوچا کہ میں ایسے ریفرنس لاؤں جو ناقابل تردید۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے دید حق لگی ہے، یہ اس کا مذہب تھا، اس کے خاندان کا، یہاں پر لکھا ہوا ہے، اپنی عبادت کا طریقہ لکھا ہے جس کو وہ دید کہتا ہے دائرے میں کھڑے ہو کر ہم عبادت کرتے تھے، اور پیشوا درمیان میں کھڑا ہوتا تھا، ایک ڈائریکشن سے شروع کرتے دوسری ڈائریکشن پر ختم کرتے، اور دن میں صرف 2 مرتبہ دید ہوتی تھی۔ اور مجھے یہ بھی پوچھنا تھا کہ قادیان میں جہاں یہ مرتد نے جھوٹے دعوے کیے وہاں تو ہمیں کسی مسجد کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ دوسری وجہ تھی میں برٹش لائبریری گیا، انہوں نے کہا قادیان میں کوئی مسجد وسجد نہیں تھی، اور پہلی بار جب غلام مرزا دفن ہوا تو اپنے دفن کے لیے اس نے اپنا مقبرہ بنوانا چاہا، ایک ٹکڑا لیا کہ یہاں دفن کر دینا۔ اور آپ کو اس بات کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اپنے بڑے بھائی غلام قادر کی زندگی میں، اور منہ بولا باپ جو اس کا اصلی باپ نہیں تھا غلام مرتضیٰ کی زندگی میں، اس نے کبھی مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس نے خاموشی سے چند پیمفلٹ لکھنے شروع کیے جس کا نام براہین احمدیہ تھا، اور اگر آپ یہ بیک گراؤنڈ سمجھیں تو آپ کو جو اسلام کا تصور پیش کرتا ہے جاہلانہ قسم کا، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے یہ ایک ایسا شخص لکھ رہا ہے جس کو اسلام میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ورنہ اسلام میں پیدا ہونے والا کبھی نہیں کہہ سکتا میں خدا ہوں اور میں نے زمین کی اور یہ کی، اور جو باتیں یہ کرتا ہے اپنی کتابوں میں وہ ایک انسانی طاقت کی باتیں کرتا ہے۔ اسی لیے قادیانی آپ کو کہیں گے ہماری عقل پر پوری نہیں اترتی تمہاری بات، یہ کیسے سچ ہو سکتی ہے؟ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اس کا خدا بالمک بھی انسان تھا جو 5000 سال پہلے پیدا ہوا، اور رامائن کا مصنف تھا جو ہندوؤں کی 2 بڑی تاریخ کی کتابیں گیتا اور رامائن ہیں۔ بالمک رامائن کا مصنف تھا، انسان تھا، لیکن ان کا خدا تھا یہ۔ ان کی اتھینٹک ہندو مذہب کی کتابیں، اتھینٹک کتابیں، لیکن اس نے اپنا مذہب شروع کیا نا بعد میں، اس کا نام اس نے بالمک رکھا۔ اب وہ ہندو کو بھی گالیاں دیتے ہیں بالمک، مسلمانوں کو تو بہت گالیاں دیتے ہیں۔ تو میں جب پڑھا تو مجھے سمجھ میں آ گئی مرزے نے جو کچھ لکھا ہے، اور اس کے نام پر جو کچھ لکھا ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ آپ کو کہیں تصوف ملے گا، وہ مرزے کی تحریریں ہی نہیں، وہ ہے مولوی عبد الکریم کی، حکیم نورے کی۔ وہ تحریروں میں آپ کو پتہ لگے گا کہ لکھنے والا شاید مسلمان ہے لیکن اسلام سے ہٹا ہوا، دھوکے باز مسلمان۔ لیکن جب مرزے کی تحریریں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کی ایک نشانی ہے، ہم نے اس کی ہر کتاب اپلوڈ کی کمپیوٹر پر، اس نے بتا دیا 7-8 لکھنے والے ہیں، اور کٹ پیسٹ پلیجرزم اتنا ہے 79.8%۔ 25% پلیجرزم پر ہم پی ایچ ڈی والے کا تھیسس ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسے فیل کر دیتے ہیں بغیر تھیسس دیکھے۔ اس کا 80% پلیجرزم نکلا۔ یہ تو حالت ہے اس کی کتابوں کی۔ آپ کچھ مت پوچھے مرزے کا۔ جی بھائی جان، اپنا نا سر ایک بات بتائیں، جی یہ کتنی عمر میں ہلاک ہو گیا تھا کمینہ؟ ہاں جی، یہ 1841 ستمبر کے مہینے پہ پیدا ہوا، اور 66 سال اور کچھ مہینے کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ چلو جنی اندی ہیگی سی جنی گزر گئی ساری تے لعنت ہے ساڈے دوستان لو۔ بے شک ڈاکٹر صاحب، ایک نا آپ نے نا بات شروع ہونے سے پہلے ایک سوال کیا ایسا آتا ہی، وہ توفیق صاحب جو آئے تھے نا، ان سے آپ نے کہا تھا، آپ نے مرزیہ سے پوچھا کہ ان کی نماز میں نیت کیا ہے؟ ہاں جی، تو ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ نہیں، نماز کی نیت ایک قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اپنوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور قادیانیوں کو اس کے سوا کوئی اور نماز کی نیت نہیں آتی۔ یہ مرزا مرتد کو حکیم نورے نے کہا تھا، اور مرزا مرتد کو بھی نہیں آتی تھی ہماری تحقیق کے مطابق۔
वो तो नमाज भी नहीं पढ़ सकता था। मिर्ज़ा कादियानी को नमाज पूरी नहीं आती थी। उसका सबूत यह है कि एक ही दफा में जिक्र मिलता है इसने इमामत कराने की कोशिश की और फारसी की गजल पढ़ने लगा, लोगों ने हाथ पकड़ा और पीछे कर दिया। है कोई कादियानी जो इसके बरखिलाफ मुझे बताए? इसके अलावा कब मिर्जे ने नमाज पढ़ाई? हाँ, इसने बशीरे ने लिखा है जनाब, जब लोग नहीं होते थे तो नुसरत जहां को अपने साथ खड़ा करके नमाज पढ़ता था। भाई उसके तो घर में ही मस्जिद थी, लोग कब नहीं होते थे। इतना कंट्राडिक्शन है इनकी नरेशन में कि एक झूठा भी सच्चा लगता है इनके मुकाबले में। और नमाज की जो नीयत, वो कुरान की एक आयत पढ़ते हैं, इन्नी वजहतु वजह लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। बड़ी खूबसूरत आयत है, कुरान का हिस्सा है, लेकिन सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी है। आपने कभी ये आयत पूरी जिंदगी नहीं पढ़ी। यही बात मैं तौफीक साहब को बताता था कि बात जाहिर में जो है ना धोखा है। 90% कादियानी अपने आप को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमान समझते हैं। जो फ्रॉडिये हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने ही कादियानियों को कत्ल करते हैं और उनकी लाशें गिराते हैं, वो सब मुल्हिद हैं, हराम के बच्चे और काफिर खानदान की पैदावार। डॉक्टर साहब आजकल एक नया ट्रेंड भी चल गया है। भाई एक मिनट, जरा मेरी बात पूरी नहीं हुई। डॉक्टर साहब मैंने ना इसलिए दोबारा इस क्वेश्चन रिपीट किया है, मैंने ना अभी डिस्प्ले भी लगाया था इनकी फिका की किताब से, वहां पे लिख रहे हैं कि नमाज, हाँ, फिका अहमदिया कहते हैं उसको, वो असल में फिका हनफिया की माँ बहन एक की हुई है इन्होंने ना। डॉक्टर साहब एक और कहानी मैं भी लगाता हूँ, एक दूसरी। अभी आपने बताया ना कि इन्नी वजह तो वजह थी, वो वाली आयत आपने पढ़ी है, इसमें से इन्होंने हाँ, इन्होंने आगे से जो पहला लफ्ज है ना इन्नी, वो रिमूव कर दिया। फिर तो इसका मतलब नहीं, इन्नी मतलब होता है मैं, इन्नी मतलब मैं, वजह तो नियत करता हूं। हाँ, तो डॉक्टर साहब इन्होंने इन्नी निकाल देंगे, उसका मतलब फौत हो जाए। हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो रिमूव कर दिया है और इन्होंने ये आयत पढ़ते हैं नियत की शक्ल में, मतलब हाँ, तकबीर तहरीमा से पहले जब कहाँ रिमूव किया है ये मैं अभी लगाता हूँ डॉक्टर साहब हवाला, मैंने तो आपके लिए लगाया था वो, मैं फिर लगाता हूँ इसको, देखो जरा। हाँ, लगाए। इनकी किताब है वो, मैं यार डॉक्टर साहब गल ये आ भी ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਬੀਸ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। देखो गल तो हमेशा झूठ ही सुनाते ने, झूठ नू जानने वास्ते सच दा जानना जरूरी है ना। तो आप थोड़ा बहुत सवाल पूछ लिया करें, हम जवाब आपको आता होगा बताएंगे, तो फिर तुसी जाके इन्हां कोल पूछ लेना, असी तुहानू सबूत दे के भेजांगे। दूसरी बात यह है कि इनसे बात कर, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां नाल कदी गल नहीं की थी, कदी मुनाजरा किसी जंदीक नाल नहीं कीता, कदी बहस नहीं की थी, सिर्फ यह हुक्म जारी किया कि इन्हां नू सजा दी जाए। यह भी याद रखने की गल है। फिर इनका मतलब है असीं इन्हां नाल गल ना करिए, लितरी जोड़ जी स्टार्ट ही। देखें, या आप मुझे सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी च 4 बहुत बड़े जंदीक आए, मुसैलमा अल कज़ाब, असवद अल अंसी, सज्जाद बिन हारिस, तलहा सदीब, जो बाद च मुसलमान भी हो गए। तुसी मैनू लिया के दिखाओ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कोई मौजू हदीस भी ऐसी होए कि उन्होंने इन्होंने क्या हो कि नहीं भी तुसी गलती तुहानू लग रही है, मैं तुहानू सच दस। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने माफ करना चाहिए, मैं ये कह रहा ना ना, माफी कोई नहीं, हक बताए इनको, हक। देखो जी, असी कतल माफ कर सकते अपने भैन भरा का, असी गुस्ताखी माफ नहीं कर सकते।
हाँ नहीं ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल ठीक गल है, गुस्ताखी बिल्कुल नाकाबिले वाफिया। और हाँ ये गुस्ताखी की माफ़ी तो है ही नहीं है, ये गुस्ताख हैं बहुत बड़े। डॉक्टर साहब कोई मरदई खिंच लिया और ब्रॉड से आपने मरदई से क्या लेना है? थोड़ी सी बात चल रही थी। हाँ एक सेकंड। सब मजा आंदा ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਦਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखो मैं एक गल तुहानू दसा ना, आप ये बात समझ लें, अगर मरज़ई मरज़इयत पर मर जाएगा तो उससे बड़ी सजा मरज़ई की हो नहीं सकती। ये तो 4 दिन की जिंदगी है, खुदा ताला का वादा है। अल्लाह ताला ने इनकी लाशों पर भी लानत भेजी है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकाति वन नास अजमईन, कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया और मर गए और मरते हुए वो काफिर थे, इन पर अल्लाह की, उसके फरिश्तों की और इंसानों सब की लानत। अब जिसकी लाश पर अल्लाह लानत भेजता है, आप सोचें आखिरत में उसके साथ क्या होने वाला है। फिर सूरह बकरा में कहा उलाइका अस्हाबुन्नार, यही लोग हैं जहन्नमी, हुम फीहा खालिदून, ये उसमें अब्दुल आबाद रहेंगे और कभी नहीं निकाले जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਵੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕੀ ਹੈ ਵਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ नहीं दस रहे हैगे। नहीं पाकिस्तान में जानबूझकर नहीं बताते, ये पाकिस्तान में इनकी हरामजदगी है। हाँ जी वो आप लगाएं, वो आप कह रहे थे कि आपको पता है ना ये सूरह इनाम की आयत है भाई अली भाई? नहीं डॉक्टर साहब अभी आपसे पता चला है मुझे। हाँ सूरह इनाम की आयत नंबर 79 है 79। ठीक होगा डॉक्टर साहब। हाँ इन्हीं इसमें देखें, हाँ जो इन्हीं काट दिया इन्होंने। एक और बात, और इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूरह फातिहा से पहले और तकबीर तहरीमा के बाद ये पढ़नी है। क्या मतलब? एक बात नहीं ये तो वो नमाज में अल्लाह अकबर कहने से पहले पढ़ते हैं भाई। हाँ डॉक्टर साहब वही बात है ना, मैं पॉइंट आपको यही रेज करना चाह रहा हूँ। ये अल्लाह अकबर से पहले पढ़ते हैं, ये इनको कहा है मिर्ज़ा ताहिर ने। ठीक है? नहीं ये हमेशा से ऐसे है। अच्छा नहीं तो डॉक्टर साहब ये इनकी लिटरेचर इनकी वेबसाइट से मैंने निकाला है, मौलवी मोहतरम अब्दुल रहमान साहब। हाँ नहीं देखें ये तहरीफ है ना, कुरान की आयत में तहरीफ है। ठीक है, इसको तहरीफ लफ्जी कहते हैं। अब देखें इन्हीं का मतलब है कि मैं, जब आपने मैं निकाल दिया तो फिर तो आपकी नीयत में ना रही। इस आयत के हिसाब से भी आप मुझे बताएं, इसका मतलब है मैंने सबसे अलग होकर अपने तई इस जात की तरफ मुतवज्जे किया। इन्नी वजह तो, और अगर आप इन्नी निकाल दें तो वो रह जाता है वजह तो वजह लिल्लज़ी फतरस समावात। ये इन्नी निकालना होगा मिर्ज़ा ताहिर ने, वो बड़ा ही लानती था, कुत्ते का बच्चा था वो। है तो आज की औलाद था लेकिन कुत्ते का बच्चा था वो। डॉक्टर साहब आप दूसरे पर्सन हैं जिन्होंने मुझे कहा कि ये तकबीर तरीमा से भी पहले पढ़ते हैं, मतलब नियत करते हुए। हाँ नियत करते हुए। हाँ और इनकी बगैर इनकी लानतीपन देखें, इनके खुद के लिटरेचर में इनकी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की है, और वहां पे ये लिखा हुआ है कि देखिए डॉक्टर साहब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मुंह से नियत के अल्फाज जो है ना, आखिरी 2 लाइनें पढ़ रहा हूँ अरबी इबारत से ऊपर की। मुंह से नियत के अल्फाज करने जरूरी नहीं, लिहाजा अलबत्ता हजरत तकबीर तहरीमा में के बाद और सूरह फातिहा से कबल दर्ज झैल दुआएं पढ़ा करते थे। ये दुआएं पढ़ना भी मौजब सवाब है। वो मिर्जा मुर्तद पढ़ा करता था, इस पक्का झूठ।